Next, to calculate DMFT in a population, all age groups, ठीक है, which sampling method should be used? सारे एज ग्रुप का यूज़ कर रहे हो, DMFT आपने कैलकुलेट करना है, सो यू आर गोइंग फॉर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ओके, when we want to calculate the DMFT in a population, all age groups, out of all given options below, stratified sampling is the most suitable as we can divide the population into different strata covering all age groups. Next, which of the following denotes moderate gingivitis as per gingival index? So moderate gingivitis जो होती है वो 1.1 से 2.0 तक होती है. ठीक है, देखो लेस देन 0 हमारे पास एक्सीलेंट कंडीशन होती है, कोई जिंजिवाइटिस या इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. 1 से 0.1 से 1 के बीच में वी हैव गुड कंडीशन, दैट्स माइल्ड जिंजिवाइटिस इज देयर बट नो इन्फ्लेमेशन, और माइल्ड टू नो इन्फ्लेमेशन इज देयर. ठीक है, अगर हम 1.1 टू 2.0 कहें तो देयर इज फेयर और मॉडरेट जिंजिवाइटिस प्लस मॉडरेट इन्फ्लेमेशन इज देयर. If we go from 2.1 to 3.0, there is poor or severe gingivitis plus severe inflammation is there. Next, the first sign of syncope is what? First sign of syncope is pallor. ठीक है, pallor जो होता है वो first sign होता है of the syncope. It's a transient loss of consciousness that is abrupt and short, followed by complete spontaneous recovery. ठीक है, प्री सिंकोप एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सेंसेशन ऑफ इम्पेंडिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लाइट हेडेडनेस पता लगता है पेशेंट को, ऑफन अकम्पनीड बाय ब्लर्ड विजन. Next, what is a confounding factor? Confounding factor is associated with both exposure and the outcome. ठीक है, a confounding factor is defined as one which is associated with both the exposure and the disease and is distributed unequally in study and control groups. More specifically, confounding factor is one that although associated with exposure under investigation is itself independently of any association with a risk factor for a disease. Next, the principal anticoagulant action of heparin is by blocking the conversion of what? ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनने देता. हेपरिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनने देता. दिस इज द प्रिंसिपल एक्शन, मोड ऑफ एक्शन. नेक्स्ट, बेस्ट टेस्ट फॉर कंफर्मिंग हीमोफीलिया इज व्हाट? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, PTT जो है वो बेस्ट टेस्ट रहता है जो हीमोफीलिया या फिर इसको कंफर्म करने के लिए हीमोफीलिया के लिए बेस्ट रहता है. नेक्स्ट, बेस्ट पल्पोटोमी एजेंट अकॉर्डिंग टू AAPD इज व्हाट? इट इज MTA. ठीक है, MTA AAPD के हिसाब से बेस्ट पल्पोटोमी एजेंट है. MTA के साथ फोमोकोरिजोल जो है दैट इज रिकमेंडेड मेडिकमेंट ऑफ चॉइस फॉर टीथ, एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन्ड फॉर 24 months और मोर. अदर मटेरियल और टेक्निक सच एज फेरिक सल्फेट, lasers, sodium hypochlorite, tricalcium silicate have additional recommendations. The AAPD use of vital pulp therapies in the primary teeth and deep caries lesions is recommended against the use of calcium hydroxide for pulpotomy. Next, all of the following are used for day care surgery except what? देखो, propofol is used for day care surgery, desflurane is used for day care surgery, sevoflurane is used for day care surgery, but ketamine is not used for day care surgery. Ketamine use नहीं किया जाता. Next, protein misfolding is seen in what? Protein misfolding is seen in Creutzfeldt-Jakob disease. कौन सी डिजीज में? Creutzfeldt-Jakob disease. Next, component of complement pathway that help in binding of the phagocytes to target proteins is what? C3b जो होता है that is a complement of complement pathway that helps in binding of phagocytes to the target proteins. Next, a patient with total lack of CD40 cells. पेशेंट में टोटल लैक है CD40 सेल्स की और B सेल्स भी वो लैक कर रहा है. व्हाट वुड बी द फाइंडिंग इन द पेशेंट्स ब्लड? पेशेंट फाइंडिंग में रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ IgG होंगे प्लस इंक्रीज लेवल ऑफ IgM होंगे. अगर CD40 कम हो जाता है और B सेल्स CD40 B सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो अगर वो कम हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ IgG एंड इंक्रीज लेवल्स ऑफ IgM. ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 40 दैट इज CD40 इज अ टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड इज रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्टिवेशन. Clinically, CD40 ligand deficiency is characterized by defects in cellular and humoral immunity resulting in susceptibility to recurrent cyanopulmonary bacterial infections and severe opportunistic infections. CD40 that is CD40L ligand deficiency or X-linked hyper IgM syndrome is a severe primary immunodeficiency that is caused by mutations in the CD40L gene. CD40 deficient patients display an impaired production of IgG. क्या क्या इम्पेयर हो जाता है? IgG इम्पेयर हो जाता है, IgA इम्पेयर हो जाता है, IgE इम्पेयर हो जाता है एंड नॉर्मल और एलिवेटेड लेवल्स हो जाते हैं IgM के. ठीक है, एलिवेटेड लेवल्स हो जाएंगे या फिर नॉर्मल लेवल्स रहेंगे IgM के. दे हैव नो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू प्रोटीन एंटीजेंस बट दे कैन हैव सम IgM एंटी पॉलीसेक्राइड एंटीबॉडीज इन देयर सिस्टम. ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनता लेकिन
सम IgM एंटी पॉलीसेकेराइड एंटीबॉडीज बन सकते हैं। नेक्स्ट, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लैंसफील्ड ग्रुपिंग इनटू व्हाट? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वो ग्रुप किए जाते हैं इनटू ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ई एंड ग्रुप एच। ABCH, ठीक है, ABCE और H। बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई लैंसफील्ड के हिसाब से ABCEH में क्लासीफाई किए जाते हैं। ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स आते हैं, ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टिकी आता है, ई में इक्विसिमिटिस आता है, डी में एंटेरोकोकस आता है और बाकी ग्रुप जो होते हैं वो E to U होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई आर क्लासिफाइड into many groups from A to K and H to U. One of the most more specifics पर species होती हैं वो पर ग्रुप प्रेजेंट होती है। ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई आर ABD, ठीक है। ABD को एक साथ ग्रुप किया जा सकता है और CGF को एक साथ ही ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। कभी कभार लेस फ्रिक्वेंटली किया जाता है। लेकिन नॉन ग्रुपेबल जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होते हैं। नॉन ग्रुपेबल स्ट्रेप्टोकोकाई आर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस causing dental caries. Next, which of the following statements is correct regarding Papillon-Lefevre syndrome? Papillon-Lefevre syndrome में हमारे पास autosomal recessive disorder है, पहली चीज़ ये। Papillon-Lefevre syndrome is an autosomal recessive disorder. Second is there is a palmar plantar keratosis. Palmar plantar keratosis हो जाती है। Third thing, there is early exfoliation of deciduous and permanent teeth. ठीक है, अर्ली एक्सफोलिएशन हो जाती है डेसिडुस और परमानेंट टीथ की, दोनों प्रीमेच्योरली जो है वो एक्सफोलिएट कर जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ डेंटिस्ट व्हाइल डीलिंग विद जेराट्रिक पेशेंट्स? देखो, डेंटिस्ट शुड शो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर जेराट्रिक पेशेंट, क्योंकि आगे वो बुजुर्ग हो चुके होते हैं तो उनमें उतनी सहनशीलता नहीं बची होती है सुनने की, ठीक है। तो द डेंटिस्ट शुड बी आइडियली एम्पैथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पर्सन। नेक्स्ट, द टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए अफेक्ट्स व्हाट? टॉक्सिसिटी अगर विटामिन ए की होती है तो इट मोस्टली अफेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया। Vitamin A exert pro-oxidant effects by altering the mitochondrial function and favoring electron leakage from the mitochondrial membrane, leading to increased free radical generation in the mitochondria. ठीक है, Vitamin A what it does, it is having an in vivo effect on mitochondrial membranes, जिससे कि ऑक्सीजन रेडिकल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से, प्रोटीन कार्बोक्सिलेशन इंक्रीज कर जाएगा, प्रोटीन नाइट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, प्रोटीन थायोल ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर जाएगा, METC जो होगा उसका इम्पेयरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल ससेप्टेबिलिटी टू एक्स वीवो चैलेंजेस विद डिफरेंट केमिकल एजेंट्स जैसे कि अमाइलॉइड, बीटा पेप्टाइड्स, परऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, वो जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव रोड टू सेल डेथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डेथ देयर इज सेल डेथ ऑफ that will occur, that will be leading to neurodegeneration and other organ failures, ठीक है। तो toxicity of vitamin A ये cause कर सकता है। Next, the magenta colored tongue is due to deficiency of which vitamin? Magenta colored tongue is due to deficiency of vitamin, that is the riboflavin. A riboflavin deficiency usually occurs with the deficiency of other B vitamins due to the diet low in vitamins or having absorption disorder. People having painful cracks in the corner of the mouth and the lips, scaly patches on the tongue, head and magenta mouth are the characteristics of riboflavin deficiency. देखो, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलियोसिस फ्रॉम राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 डेफिशिएंसी उसमें होती है, ठीक है। और इसके साथ अगर ग्लॉसाइटिस है विद स्टोमेटाइटिस फ्रॉम द राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी तो वहाँ पे टिपिकली स्मूथ और मैजेंटा कलर की टंग हो जाती है। इट्स एन also having an evidence of angular stomatitis, that is vitamin B2 or riboflavin deficiency. Next, a young boy presents with type 1 diabetes mellitus, presents with unconsciousness. His urine is subjected to test and the test is provided below. देखो, एक टेस्ट में एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दे रखा है, फिर पॉजिटिव टेस्ट आया उसका, ठीक है। नेगेटिव टेस्ट में क्या होता है कि ब्राउन कलर का सॉल्यूशन में कोई भी रेड रिंग नहीं बनती है, पॉजिटिव कलर के में एक रेड रिंग बन जाती है टेस्ट में, ठीक है। नाउ रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट बोलते हैं इसको। नेगेटिव में मतलब पूरा ब्राउन ही रहेगा, अगर बिल्कुल माइल्डली पिंकिश रिंग बन रही है तो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर उससे डार्क कलर होता जाता है, लास्ट में बिल्कुल ब्राउनिश कलर हो जाता है, रेड के बाद बिल्कुल ब्राउनिश कलर हो जाता है। व्हाट इज दिस टेस्ट? इट इज़ अ सिंपल रॉथराज टेस्ट।
Rothera test is a method of testing to urine for the presence of acetone or acetoacetic acid that is a sign of diabetes mellitus. क्या चेक कर रहे हैं? एसीटोन या acetoacetic acid. A diabetic patient is at a risk of diabetic ketoacidosis with excretion of ketone bodies in the urine, which can be detected by the Rothera test. Principle is that acetone and acetoacetic acid react with sodium nitroprusside, जो कि आपके एक टेस्ट सैंपल में प्रेजेंट है, जो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली टू प्रोड्यूस अ पर्पल कलर. ठीक है. मेथड में आप क्या करेंगे? आप 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर सैचुरेट करेंगे उसको विद अमोनियम सल्फेट, देन ऐड 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड देन जेंटली ऐड 0.5 ml ऑफ लिक्विड अमोनिया अलॉन्ग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब. अगर कलर चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है, ऊपर का ही कलर चेंज होगा पहले जब लिक्विड अमोनिया चेंज डालोगे आप, तो दैट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव टेस्ट. नेक्स्ट नेबर्स प्रोब की आपको एक इमेज दे रखी है और बोला आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. इट्स अ नेबर्स प्रोब. नेबर्स प्रोब यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द परकेशन. इट कैन बी कैलिब्रेटेड में. इसमें 3 to 6 की रेंज में हमारे पास एक डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, उसके बाद 9 to 12 की रेंज में एक डार्क बैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये एक क्वेश्चन मार्क शेप्ड नेबर्स प्रोब होता है हमेशा. ठीक है. और इट इज़ नॉन कैलिब्रेटेड. इट कुड बी नॉन कैलिब्रेटेड. Now choose the correct sequence of auditory pathway. Auditory pathway में first you have 4 चीज़ें दी हैं: auditory nerve, cochlea, inferior colliculus and superior olivary complex. इसमें से cochlea is the first thing. Cochlea, that is B. It will be the first thing. उसके बाद आता है cochlea के बाद auditory nerve. Auditory nerve के बाद आता है superior olivary complex and superior olivary complex के बाद आता है inferior colliculus. ठीक है. First cochlea, then auditory nerve, then superior olivary complex, and then you have inferior colliculus. Next, which structure doesn't transverse through parotid gland? 4 ऑप्शन दिए. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ट्रांसफर्स करती है, फेशियल नर्व ट्रांसफर्स करती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ट्रांसफर्स करती है, बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डज नॉट ट्रांसफर्स थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड. इंटरनल कैरोटिड नहीं करती है. नेक्स्ट, मैक्सिला आर्टिकुलेट्स विद ऑल एक्सेप्ट व्हाट? Maxilla articulates with the frontal bone, it articulates with the palatine bone, it articulates with the zygomatic bone. But maxilla does not articulate with the temporal bone. Okay. Each maxilla articulates with 9 bones. हर एक maxilla 9 bone के साथ articulate करता है. ठीक है. Frontal ethmoidal nasal, zygomatic lacrimal palatine, vomer inferior nasal concha as well as the maxilla of other side. ठीक है. कौन कौन? मैक्सिला ऑन द अदर साइड, inferior nasal concha, vomer, palatine bone, lacrimal bone, zygomatic bone, nasal bone, ethmoidal bone and frontal bone. इन सभी के साथ maxilla does articulate. Next, the common carotid artery bifurcates at what? Bifurcates at thyroid cartilage, at the level of thyroid cartilage, जो common carotid artery जो bifurcate करती है. Next, match the following. Okay, mandibular nerve जो है that is associated with chewing. Okay, mandibular nerve is associated with chewing. B, facial nerve. Facial nerve is supplying to anterior 2/3 of the tongue. Facial nerve is supplying to anterior 2/3 of the tongue. Next, we have the glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve supplies to the posterior 1/3 of the tongue. And spinal root of accessory nerve, it is used for turning of the head. ठीक है. Spinal root of accessory nerve will be used for turning of the head. The mandibular branch of the trigeminal nerve supplies the muscles of mastication which help in chewing. The facial nerve provides sensory innervation to the anterior 2/3 of the tongue. The glossopharyngeal nerve provides taste to the posterior 1/3 of the tongue. The spinal accessory nerve supplies to sternocleidomastoid and trapezius muscles which help in turning the head and elevating the hand. Next, damage to which nerve leads to inability to raise arm horizontally above the level of shoulder? अब shoulder के ऊपर अगर आपकी आर्म नहीं जा पा रही है तो it will be due to the damage of 11th cranial nerve. ठीक है. The spinal accessory nerve is the 11th cranial nerve. Spinal accessory nerve is the 11th cranial nerve. It is the motor nerve or somatic motor nerve innervating 2 muscles, that is sternocleidomastoid and trapezius. 2 muscles को supply करता है, sternocleidomastoid and trapezius को. Pain is the most common presenting symptom of the patients with an accessory nerve injury. It is often ipsilateral to the lesion and may radiate to along the upper and back of the neck. Furthermore, patients may have trouble performing some basic activities of daily living that require elevation of the shoulder, as well as they will experience varying degree of weakness depending upon the extent of the injury. Injury suggesting the mechanism may also be elicited as well. On inspection of the shoulder itself, not the cranial nerve as described above, the patient may only have signs of muscle wasting if the injury has been present for a while.
ठीक है, सिर्फ मसल वेस्टिंग दिखाई देगी अगर इंजरी बहुत दिनों से प्रेजेंट है. हाउएवर देयर मे बी ड्रूपिंग ऑफ द अफेक्टेड शोल्डर एज द मसल इज नो लॉन्गर एबल टू पैसिवली एलिवेट द शोल्डर. The joint may become stiff and difficult to mobilize with both active and passive maneuvers. Next, the blade that is shown in the image is used for what? ये है हमारे पास क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी के लिए ब्लेड जो है यूज़ किया जाता है. ठीक है, क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी also called as cricothyroidotomy. It's a procedure involving and placing a tube through the incision in the cricothyroid membrane to establish an airway for oxygenation or ventilation. और ये ब्लेड जो है वो सिंपल स्ट्रेट ब्लेड है. ठीक है, ये नंबर 11 ब्लेड होता है हमारे पास. अगर ब्लेड जो है वो एक वेपन की तरह आ जाता है, ठीक है, एक पूरी स्लांट में ऐसे घूम रहा है, तो इट इज़ नंबर 10 ब्लेड. इट इज़ अ ब्लेड विद अ कर्व्ड बेली, द बेली बीइंग द शार्प एज यूज इन मेकिंग स्किन इंसिजन्स. ओके, बेली टाइप अगर ब्लेड है तो इट इज़ 10 नंबर ब्लेड. अगर बिल्कुल शार्प ट्राइंगल लाइक ब्लेड है जैसे ये है तो इट इज़ 11 नंबर ब्लेड. ठीक है, और उसके बाद आता है एक एकदम नॉच जैसा होता है, क्रीसेंट शेप होता है. इनर साइड ऑफ द क्रीसेंट इज शार्प, यूज्ड इन रिमूविंग सूचर्स, पैरोटिड एंड क्लेफ्ट पैलेट सर्जरीज. ठीक है, पैरोटिड और क्लेफ्ट पैलेट सर्जरीज में ये 12 नंबर वाला ब्लेड यूज़ किया जाता है जो कि एक शार्प एकदम क्रीसेंट शेप होता है. नेक्स्ट, मैच द कंप्रेशन सिम्टम्स विद देयर कॉजेज विच रिजल्ट फ्रॉम थायराइड स्वेलिंग. थायराइड स्वेलिंग से कैसे कैसे सिम्टम और कॉजेज आते हैं. डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग वुड अकर ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस कंप्रेस हो जाएगी तो इट विल लीड टू डिस्फेजिया. डिस्निया, dyspnea is difficulty in breathing that would occur if the trachea is compressed. ठीक है, dysphagia अगर esophagus compress हो रही है, dyspnea if the trachea is being compressed. उसके बाद hoarseness of voice. Hoarseness of voice occurs due to damage to the recurrent laryngeal nerve. recurrent laryngeal nerve को अगर डैमेज हो जाता है तो उससे hoarseness of voice आती है. उसके बाद बात आती है Horner's syndrome की. Horner's syndrome it's a rare condition classically presenting with the partial ptosis. ठीक है, that is drooping or falling of the upper eyelid. That's Horner syndrome. There is meiosis. There is constricted pupil. Meiosis का मतलब होता है constricted pupil. And facial anhidrosis is there. That is loss of sweating is there due to the disruption of sympathetic nerve supply. Next, coronectomy is done in the cases where there is a proximity to which vital structure. Coronectomy is done अगर हमारे पास proximity रहती है to inferior alveolar nerve. Coronectomy is a technique used for wisdom teeth surgery where only the crown is extracted and the roots are left in situ. ठीक है, it is usually done in the cases where the roots of the teeth are in very close proximity or dipping into the inferior alveolar gland. This poses a risk for post-operative paresthesia. If the roots are uninfected, only the crown can be removed and the roots can be left behind. Next is again a match the following question. Okay. So facial nerve, it is associated with taste from anterior 2/3 of the tongue. Glossopharyngeal nerve is associated with taste or touch from posterior nerve 1/3 of the tongue. ठीक है, posterior 1/3 of the tongue जो होगी वो glossopharyngeal आ जाएगी. फिर spinal accessory जो होती है that is shrugging of the nerve shoulders. Okay, spinal accessory is for the shrugging of the nerve shoulder. और फिर mandibular nerve आती है लास्ट में. Mandibular nerve, it supplies the muscles of mastication. Next, what is the function of shown muscles? The image shows rhomboid muscles. ये जो पीछे muscles होते हैं scapula के बीच में और गले और scapula के बीच में, these are rhomboid muscles. The main action of rhomboid muscles is scapular retraction around the scapulothoracic joint. Main action क्या है? Scapular retraction around the scapulothoracic joint. The scapular retraction is the simultaneous sliding of the scapula superiorly and medially. Simultaneously sliding of scapula superiorly and medially along the trunk. This superior medial movement of the scapula rotates the glenoid cavity inferiorly, drooping the shoulder girdle. ठीक है. In addition, the contraction of the rhomboids fixes and stabilizes the scapula position. The rhomboids also work in conjunction with levator scapulae to elevate and retract the scapula. It's the pattern of change of disease trends of mortality and morbidity where the pandemics of infections are replaced by degenerative and man-made disorders as the main cause of morbidity and mortality is known as what? It is known as epidemiological transition. जहाँ पे disease trends, mortality और morbidity के जो है वो अब पैंडमिक्स ऑफ इन्फेक्शंस जो पहले होते थे वो अब मैन-मेड डिसऑर्डर्स के बजाय रिप्लेस हो चुके हैं. ठीक है, अब मैन-मेड डिसऑर्डर्स जो है वो मोर्टैलिटी करवा रहे हैं और मॉर्बिडिटी करवा रहे हैं. इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन. नेक्स्ट, इफ द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज इज हाई एंड द प्रेवलेंस इज लो, इट मीन्स व्हाट? अगर इंसिडेंस हाई है
और प्रेवलेंस लो है, इट मीन्स दैट द डिजीज इज ईदर इजिली क्यूरेबल और इट इज़ वेरी फेटल। ठीक है, या तो डिजीज़ होते ही बंदे मर जा रहे हैं, उसकी वजह से प्रेवलेंस इन द पॉपुलेशन इज़ लो। ठीक है, या फिर ये डिजीज़ इतनी क्यूरेबल है कि किसी इंसान को अफेक्ट कर रही है, उसके बाद वो 1-2 दिन में ठीक हो जा रहा है। नेक्स्ट, नॉट यूज एज अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर इज़ व्हाट। देखो, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, वेट एंड हाइट आर यूज फॉर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इज यूज फॉर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, लो बर्थ वेट इज अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। ठीक है, बट द वाइटल साइंस दे आर नॉट यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। वाइटल साइंस आर नॉट यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। नेक्स्ट, ड्यूराफैट में फ्लोराइड कंटेंट कितना होता है? ड्यूराफैट कंटेन्स द फ्लोराइड कंटेंट ऑफ 22,600 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, 22,600 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम? इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज है ऑफ वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम? वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम हेल्प्स इन अचीविंग फास्टर टारगेटेड हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, क्या अचीव करने में हेल्प कराता है? फास्टर टारगेटेड हेल्थ आउटकम्स अचीव करने में टारगेट करवाता है। इट्स ऑफन ड्रिवन बाय डोनर्स एंड प्लानर्स। डिसएडवांटेज क्या रहता है वर्टिकल वाले का? कि इट ऑफन अंडरमाइंस अ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कैन इम्पोज वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर ऑन एशियन सोसाइटी। Nosocomial infections are defined as the infections that a patient contracts after how many hours of stay in the hospital while receiving the health care? तो आंसर है 48 आवर्स के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट को होता है आफ्टर कमिंग टू हॉस्पिटल तो उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और या तो विद इन 30 डेज ऑफ एडमिशन कोई ना कोई हुआ है पेशेंट को इन्फेक्शन, या फिर फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर पेशेंट के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो चल पड़ा है, और ये इन्फेक्शन पेशेंट को पहले नहीं था। ठीक है, हॉस्पिटल की यूनिट में आया और 48 घंटे के अंदर उसको ये इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और फिर एक दिन उसने हॉस्पिटल में एडमिशन किया था, सिर्फ एक दिन के लिए आया था मान लो हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर अगले 30 दिन के पीरियड के अंदर अगर उसे कोई इन्फेक्शन होता है दैट वाज नॉट इनिशियली प्रेजेंट, सिर्फ वो एक दिन के लिए आया, वहाँ पे एक दिन के लिए एडमिट हुआ था और पेशेंट केयर घर पे जब हो रही है तब उसको वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट विल बी ऑल्सो कमिंग अंडर नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। Next, an economic analysis that compares outcome in term of LYG, that is life in year gained. For example, dollar per life year gained is known as what? It is known as cost effective analysis. ठीक है, health effects are usually measured at the terms of life years gained or the quality adjusted life, that is QALYs. Accounting also for the quality of life outcomes. An economic analysis which LYG are used are often referred to as cost-effective analysis, with its parameter of interest being called as the incremental cost effectiveness ratio, ICER, incremental cost effectiveness ratio. Whereas an analysis where the QALI are used is often caused as cost utility analysis, and the resulting parameter is called as incremental utility ratio. ठीक है, टर्म्स क्या क्या है? एक है इंक्रीमेंटल कॉस्ट यूटिलिटी रेशो, जहाँ पर कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस की जा रही है। ठीक है, और दूसरी है इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशो, जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जा रही है। ये दोनों इकोनॉमिक एनालिसिस हैं लाइफ ईयर गेंड के अंदर। ठीक है, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ एडजस्टेड के अंदर। बोन ग्राफ्ट इज ऑप्शन एंड रिप्लेसमेंट बाय इन ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स एंड न्यू बोन फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज क्रीपिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, creeping substitution is the process of remodeling of the bone by osteoclastic resorption and creation of new vascular channels with the osteoblastic bone formation resulting in new Haversian systems, and is method by which strong cortical bone is formed from the grafted material. Next, an economic analysis that compares cost in monetary units with patient-centered outcomes measures in respect to QALY, that's quality of life years, or an economic analysis that compares outcome in terms of QALY for cost per ratio is known as what? It is known as cost utility ratio or cost utility analysis. सवाल है economic analysis comparing the cost of two different interventions with the same health outcome. दो different intervention को हम compare कर रहे हैं with the same health outcome, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज नोन एज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। नेक्स्ट, विच कमिटी गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस? क्रिएशन ऑफ बैंड्स ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी itself, establishment of two cadres of healthcare workers, namely multi-purpose health workers and health assistant. तीसरा आता है reorient medical education.
तो ये जो थी, ये तीनों श्रीवास्तवा कमेटी ने दिया था ये सारे, ठीक है, कि पैरा प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर होने चाहिए, 2 कैडर हेल्थ केयर सिस्टम के होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होने चाहिए, और रीओरिएंट करना है हमने मेडिकल एजुकेशन को. दिस वाज गिवन बाय श्रीवास्तवास कमेटी. नेक्स्ट, विच कमेटी गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस? एडवाइस स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, मतलब अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें. सेकंड इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है. तीसरा है लॉन्ग रेंज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सिटीजन्स, लॉन्ग रेंज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सिटीजन्स. चौथा है मोबाइल टीम सर्विसेज फॉर रूरल एरियाज. ये सारी जो थी ये मोदालियर कमेटी ने दिया था. मोबाइल सर्विसेज टीम फॉर रूरल एरियाज, लॉन्ग रेंज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सिटीजन्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड एडवाइज स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. दिस वॉज गिवन बाय मोदालियर कमेटी. Next is, which committee gave the following recommendations? Integration of preventive and curative services to all administrative levels. ठीक है, preventive and curative services. उसके बाद 3 months training in preventive and social medicine to prepare for social physicians. ठीक है, मतलब social physician prepare करने 3 month की preventive और social medicine की training देंगे. So it was given by बोहरे community. ठीक है, BHORE बोहर community ने दिया था इसको. Next, simplest measure of dispersion is what? Simplest measure of dispersion is range. ठीक है. Measures of dispersion, there are several measures of dispersion based upon the variation. ठीक है. और dispersion as it is technically called, of which following are widely known. The range. The range is by far the simplest measure of dispersion. उसके बाद आता है mean और average deviation. उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ डेविएशन. An oral health program is being conducted in a school every 6 months. Demonstration on the tooth models regarding brushing techniques and mouth rinsing. Those with good oral hygiene were rewarded a toothbrush or a toothpaste. At the end of the session, questions were asked and the suggestions were taken from the children. Which principle of health education is being followed here? Here there is reinforcement principle being followed, learning by doing, motivation, participation and feedback. Next, non-sampling error results from what? Non-sampling error results from non-response from the suspect. ठीक है, non-sampling error तब आता है जब कोई response आपको जो subject है उससे नहीं आ रहा होता है. Next, which of the following statistical tests is used to compare median of 2 independent groups? Mann-Whitney test, Mann-Whitney-U test. कौन सा? Mann-Whitney-U test is a non-parametric test that compares the independent samples medians when data are either continuous but without normal distribution or ordinal ranked scales. ठीक है. Bacteria adhere to the surface of the tooth with the help of what? तो डेक्स्ट्रान की वजह से बैक्टीरिया जो है वो हेल्प एडेयर कर जाता है टू द सर्फेस ऑफ द टूथ. एनी डेंटल कैरियस लीजन इज अ डीकैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर बाय एसिडिक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ओरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. द प्राइमरी etiological agent of this disease is the bacterium Streptococcus mutans, which has ability to produce extracellular polysaccharide capsule that is known as dextran, which mediates and adheres to the surface of organism or to the tooth structure. Next, arcus marginalis is the fusion of what? Arcus marginalis is a fusion of orbital septum with infraorbital rim periosteum. ठीक है, infraorbital rim जो है वो फ्यूज कर जाता है superiorly with tarsal plate and inferiorly with the periosteum of the infraorbital rim. This inferior attachment of the septum is termed as arcus marginalis. According to hierarchy of evidence, randomized control trial are at what level? RCT जो होता है randomized control trial, that they are at the level 2. Next, which of the following is false about the descriptive और डिस्क्रिप्टर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर? देखो, डिस्क्रिप्टर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सा होता है आपका? होता है मॉड दैट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव डेटा. मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है, और मीन जो होता है वो चेंज करता है विद एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है, और जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज मीडियन वैल्यू इज टेकन फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन. तो मीडियन वैल्यू सारी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ बीच वाला हिस्सा ही चाहिए होता है मीडियन के लिए. Next, which of the following best describes mod? Mod is defined as most repeated value in a set of values. जो सबसे ज़्यादा repeated value होती है in the set of values, that is defined as mod. Next, what are the characteristics of normal distribution curve? Normal distribution curve में mean is equal to 0 and standard deviation is equal to 1. ठीक है, mean 0 होता है और standard deviation 1 आता है. Next, the community where prevalence of a betel quid chewers is high, health policy is to stop
the sale of betel quid or tobacco products. It was implemented, and also penalties and fines were imposed to stop the people from consuming it at the same time. Which of the following levels of prevention are presented in this case scenario? यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो शो किया गया है, ठीक है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन वो होती है जहाँ पे हम इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं इन द कंट्रीज और द पॉपुलेशन ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ पे अभी तक डिजीज़ अपीयर नहीं करी हुई है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन तब होता है जब हमारे पास जो डिजीज़ है वो अगर कर गई है, उसके बाद हम उसको रोक रहे हैं कि अब नहीं करना है, नहीं तो ये और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी। नेक्स्ट, हाउथॉर्न इफेक्ट इज सीन इन विच स्टडी? हाउथॉर्न इफेक्ट जो होता है वो कोहॉर्ट स्टडी में भी देखा जाता है और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर भी देखा जाता है। इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन द नॉर्मल बिहेवियर टिपिकल ऑफ इंडिविजुअल्स हु नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअल जो कि रिसर्च, उसको पता है कि मेरे ऊपर रिसर्च चल रही है, तो उसका बिहेवियर कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज हाउथॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट, द हेलसिंकी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? It is related to ethics in biomedical research. Okay, Declaration of Helsinki are the set of ethical principles for medical research involving human subjects adopted by 18th WMA, 18th Women Medical Association, General Assembly, Helsinki, Finland in June 1964. The World Medical Association has developed Declaration of Helsinki as a statement of ethical principles for medical research involving human subjects, including the research on identifiable human material and data. Next, on performing Snyder test, color changes to yellow in 48 hours. What does it mean in relation to Carey's activity? अगर येलो में चेंज हो जा रहा है स्नाइडर टेस्ट के अंदर तो इट इज़ डेफिनेट, ठीक है। टाइम इन आवर्स 24, 48 एंड 72। अगर कलर चेंज कर रहा है येलो में 24 आवर्स के अंदर तो केरीज एक्टिविटी इज़ मार्क्ड। अगर कलर चेंज ग्रीन कर रहा है तो केरीज एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है हमने, ठीक है, टेस्ट को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर 48 आवर्स के अंदर कलर जो है वो येलो में आ रहा है तो देयर इज़ अ डेफिनेट केरीज एक्टिविटी, और कलर ग्रीन आ रहा है तो हमें कंटिन्यू टेस्ट करना है। अगर हमारा 72 आवर्स के अंदर येलो कलर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब लिमिटेड एक्शन है हमारे पास, केरीज एक्टिविटी एक्शन जो है वो लिमिटेड है। अगर अभी भी कलर ग्रीन है जो कि स्नाइडर टेस्ट का होता है तो मतलब है इनएक्टिव हमारे पास केरीज एक्टिविटी आई। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज़ नॉट इंसिनरेटेड? जो शार्प्स वेस्ट होता है वो इंसिनरेट नहीं किया जाता। ब्लड कंटेमिनेटेड कॉटन इंसिनरेट कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग कर सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है उसे इंसिनरेट कर सकते हैं, बट शार्प्स आर नेवर इंसिनरेटेड। नेक्स्ट, xylitol इज़ व्हाट? xylitol इज़ नेचुरल 5 कार्बन शुगर, ठीक है, नेचुरल 5 कार्बन शुगर होता है xylitol। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल को बाइंडिंग उसको रोकता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कैन नॉट फर्मेंट और मेटाबोलाइज xylitol, तो वो xylitol से कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। xylitol जो है वो केरीज का पाथवे जो है, केरीज असेंबली का पाथवे जो होता है उसको भी कम कर देता है। नेक्स्ट, लीस्ट कैरियोजेनिक अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड इज व्हाट? 4 ऑप्शन दिए, कुक्ड स्टार्च, रॉ स्टार्च, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। तो रॉ स्टार्च इसमें सबसे कम जो है उसकी केरीज एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, वाइप हॉल्म स्टडी वॉज डन टू एवेलुएट व्हाट? वाइप हॉल्म स्टडी वॉज डन टू एवेलुएट द रोल ऑफ नॉन स्टिकी शुगर्स इन कॉजिंग केरीज। क्या चीज़ चेक करने के लिए? रोल ऑफ नॉन स्टिकी शुगर्स इन कॉजिंग केरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनटेक ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम ऑल सोर्सेज कंबाइंड इन अ डेली अडल्ट एंड चाइल्ड रिस्पेक्टिवली? देखो, अडल्ट के लिए यू शुड हैव 1.7 to 3.3 मिलीग्राम पर डे ऑफ फ्लोराइड, and for children you have to have 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। अडल्ट के लिए 1.7 थे 3.3 और चिल्ड्रन के लिए 0.7 से लेकर 1.3 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी? देखो, एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी में न्यूरो सप्रेशन अकर करता है इन सीवियर केसेस, ठीक है। प्लस देयर इज इनहिबिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एंड द नर्व फंक्शन, दैट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कैल्शियम के केमिकल कम्प्लेक्स बन जाते हैं विद फ्लोराइड लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नर्व फंक्शनिंग। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ओके। नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्मूला फॉर नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी वैल्यू इज व्हाट? नेगेटिव प्रेडिक्टिविटी वैल्यू का करेक्ट फॉर्मूला होता है Tn डिवाइडेड बाई Tn प्लस Fn, ठीक है। Next, the missed cases are detected by what? They are detected by sentinel surveillance. Sentinel surveillance can be defined as
no routine notification system, and can identify all the cases of infection or disease. A method of identifying the missing cases and thereby supplementing the notified cases is required. This is known as sentinel surveillance. Predominant antibodies in response to caries vaccine via parenteral route is what? अगर caries की vaccination हम दे रहे हैं via parenteral route तो हमारी predominant antibodies will be IgG. ठीक है, क्योंकि सिस्टमिक इम्यूनाइजेशन हम कर रहे हैं या फिर पेरेंटल रूट के थ्रू दे रहे हैं, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रीडोमिनेंट IgG एंटीबॉडीज. म्यूकोजल इम्यूनाइजेशन अगर करते हैं, ओरल रूट करते हैं, तो उससे IgA इंक्रीज करता है. म्यूकोजल से A इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट अगर ब्लड में जा रहा है तो G इंक्रीज करेगा. ठीक है, G विल इंक्रीज अगर डायरेक्ट सिस्टमिक में जा रहा है. सलाइवा में IgA आर प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडीज. ठीक है, नेक्स्ट Lagarde's criteria is related to what? Lagarde's criteria is related to diffusion of innovation. ठीक है, diffusion of innovation. Next, the ratio between the incidence of a disease among exposed to incidence among non-exposed is known as what? It's known as relative risk. ठीक है, किस चीज़ के बीच में रेशियो है कि ऐसे लोग जो एक्सपोज हो रहे हैं उनका और जैसे लोग जो एक्सपोज नहीं हुए हैं उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज रिलेटिव रिस्क. Next, the difference in the incidence rates of disease or death between an exposed group and a non-exposed group is known as what? Risk. It is known as attributable risk. ठीक है, incidence rate of disease or death between exposed group, उसका माइनस करना है हमने non-exposed group. That is known as attributable risk. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? Attributable risk is often expressed as a percent. This is given by a formula: incidence of a disease rate among exposed minus incidence of disease rate among non-exposed divided by incidence of rate among exposed into 100. Next, any loss of abnormality or psychological or anatomical structure is called as what? अगर psychological या anatomical structure की loss या abnormality हो जा रही है तो that is known as impairment. ठीक है, WHO ने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड की डेफिनेशन दे रखी है. इम्पेयरमेंट का मतलब होता है इट्स डिफाइंड एज एनी लॉस और अबनॉर्मलिटी इन साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन. एग्जांपल लॉस ऑफ फुट, डिफेक्टिव विजन या फिर मेंटल रिटार्डेशन इज इम्पेयरमेंट. सेकेंड आती है बात डिसेबिलिटी के बारे में. बिकॉज ऑफ एन इम्पेयरमेंट द अफेक्टेड पर्सन मे बी अनेबल टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज कंसिडर्ड फॉर हिज एज, सेक्स और एटसेट्रा. This inability to carry out certain activities is termed as disability. A disability can be defined as any restriction or lack of ability to perform any activity in a manner or within the range considered normal for human being. तीसरी चीज़ आती है handicapped. Handicap का मतलब होता है it is a result of disability the person experiences certain advantages or disadvantages in his life and is not able to discharge the obligations required of him to and play a role expected of him in the society. This person is known as handicapped. It is defined as a disadvantage for a given individual resulting from impairment or a disability that limits or prevents his fulfillment of role that is normal, that depending on age, sex, social, cultural factors for that individual. Next, not included in AAPD guide classification of primary pulp pathology is what? देखो, irreversible pulpitis with periodontitis is not included. Irreversible pulpitis with periodontitis is not included in AAPD classification for primary pulp pathology. Next, the synonym SMART includes combination of what? SMART के अंदर हमारे पास आ जाता है SDF, silver diamine fluoride plus GIC. ठीक है, SMARट इज सिल्वर मॉडिफाइड ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट. इसमें हमारे पास ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें सिल्वर डायमिन फ्लोराइड है और GIC हो सकता है उसके साथ. ठीक है, जिससे कि अप्रोच क्या हमारी कि हमें बैक्टीरिया को किल करना है प्रायर टू सीलिंग द कैविटी विद ग्लास आइनोमर सीमेंट. तो पहले हम सिल्वर डायमिन फ्लोराइड यूज़ करते हैं, उसके बाद वी गो ऑन फॉर GIC. नेक्स्ट, द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द सक्सेस ऑफ पल्पेक्टोमी इन प्राइमरी टीथ आर व्हाट? तो प्री ऑपरेटिव हमारे पास रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स होनी चाहिए. स्टेटस ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स ऑफ प्राइमरी टीथ शुड बी चेक्ड. Quality of root canal filling after instrumentation should be checked, and post-operative restoration in endodontically treated teeth should be checked as a factor to determine the success of pulpectomy in primary teeth. Next, in a child with anterior open bite, proclined incisors, high arch palate,
Lower teeth crowding. What can be the cause? The cause can be thumb sucking. Thumb sucking में हमारे पास जो dental findings होती है, they are included, that is protruded maxillary incisors, anterior open bite, increased maxillary arch length as a result of atypical muscular forces from the thumb and the perioral musculature and forward positioning of the tongue. The child with a persistent digit sucking habit that results in an open bite typically exhibits a convex profile with hypotonic upper lip, lower lip hypertonicity. अपर लिप हाइपोटोनिक होता है और लोअर लिप हाइपरटोनिक होता है, ज़्यादा टोनिसिटी होती है लोअर लिप की, विद मार्क्ड मेंटालिस मसल एक्टिविटी एंड टंग थ्रस्टिंग. नेक्स्ट, ऑल द बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेबल फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अदर एक्सेप्ट वन दैट इज रेयरली सीन. पी जिंजिवालिस जो होता है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होता. पी इंटरमीडिया इजीली ट्रांसफर हो जाता है. न्यूक्लिएटम फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम इजीली ट्रांसफर हो जाता है. एक्टिनोमाइसिटिस कॉमिटेंस ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है. बट पी जिंजिवालिस जो है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होता है. इट इज़ रेयरली ट्रांसमिसेबल फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अदर. ट्रॉमेटाइज्ड जिंजाइवा इज मैनेज्ड बाय व्हाट? ट्रॉमेटाइज्ड जिंजाइवा इज मैनेज्ड बाय कंजर्वेटिव डेब्राइवमेंट बिकॉज नेक्रोसिस इज अनयूजुअल. ठीक है, कंजर्वेटिव डेब्राइवमेंट करी जाती है क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस अनयूजुअल रहता है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोब विद द मार्किंग्स. देखो प्रोब के आगे एक बॉल लगा हुआ है, ठीक है, और मार्किंग्स दी हुई हैं ब्लैक, और ब्लैक मार्किंग दी हुई है. सो इट इज़ बेसिकली CPITN, दैट्स कम्युनिटी पेरिडोनटल इंडेक्स ट्रीटमेंट नीड्स प्रोब, जिसमें मार्किंग्स जो होती हैं, पहला बैंड जो होता है वो 3.5 से 5.5 के बीच में आता है, ठीक है, और दूसरा बैंड आता है 8.5 to 11.5 के बीच में. देखो दो तरह के होते हैं CPITN प्रोब, एक होता है इकोनॉमिकल और एक होता है C क्लिनिकल. देखो जो E होता है CPITN E, उसमें हमें फास्ट करना होता है काम, तो उसमें सिर्फ एक ही डार्क बैंड होता है. क्लिनिकल में हमें ज़्यादा डेप्थ में हमें चीज़ें चेक करनी होती है, तो इसमें 2 बैंड्स होते हैं. क्लिनिकल विल हैव 2 बैंड्स, दैट इज C विल हैव 2 बैंड्स, और E के अंदर एक ही बैंड होता है, दैट इज़ फ्रॉम 3.5 to 5.5. एक इमेज दे रखी है जिसमें एक कटिंग हमारे पास रिमर है, जिसमें 3 डॉट पीछे लगे हुए हैं और आगे एक कटिंग एज है जो कि एक कंघी की तरह है. ठीक है, सो इट्स बेसिकली अ पीजो इलेक्ट्रिक इंसर्ट जो कि पेरियो या फिर ओरल सर्जरी में यूज़ किया जाता है. द प्रोसीजर यूजेज ultrasonic device that creates micro vibrations to cut the bone. The piezoelectric dental device works only onto the bone. Main disadvantage of piezoelectric surgery, which are precise and selective cutting, but only mineralized tissue will be cut. ठीक है, सिर्फ mineralized tissues में cut होता है. In avoidance of thermal damage and safety for the patient. Next, a 12-year-old child presents with tetracycline staining on the teeth, presents for a long time. The treatment for mild yellowish stains present on the teeth will be what? इसमें आप होम ब्लीचिंग टेक्निक दे सकते हैं फॉर द माइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ येलोइश स्टेन्स ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट, अ पेशेंट अराइव्स टू द डेंटल क्लिनिक आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक इंजरी टू हिज टूथ व्हिच लेड to the tooth coming out of its socket. He had collected the tooth from the area of the fall, handed it to the dentist. When he arrives, half an hour is passed after sustaining this injury. The dentist then places the tooth in a solution and prepares the socket for further treatment as shown in the image below. What is the solution which the dentist will use to put the teeth? It is Hank's balanced salt solution. ठीक है, Hank's balanced salt solution यूज़ किया डेंटिस्ट ने. यूजली हम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. मिल्क इज़ यूज एज अ स्टोरेज मीडियम क्योंकि इट इज़ वाइट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड. द सॉल्यूशन ऑफ द इमेज इज़ क्लियर. अगर इमेज आपको क्लियर दिखाई हुई है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो इट विल बी हैंक्स बैलेंस स्टोरेज मीडिया. अगर मिल्क दिखाया हो तो मिल्क यूज़ करेंगे, मिल्क टिक करेंगे. मोस्ट प्रैक्टिकल एंड ईजिली अवेलेबल स्टोरेज मीडियम है शॉर्ट टर्म के लिए. पल्प की जो PDL सेल्स होते हैं उनकी वाइटैलिटी को मेंटेन करके रखता है. इट हैज़ क्लोनोजेनिक एंड मीटोजेनिक प्रॉपर्टी फॉर द सेल्स. क्लोनोजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज करती है इफ़ द चिल्ड मिल्क इज़ यूज. ठीक है, और आइस पैक रख दिया जाता है मुंह के ऊपर फॉर एडिशनल 45 मिनट्स. इससे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बचे रहते हैं, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर बचे रहते हैं. सेलाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट द प्रेफर्ड मीडिया इज़ कोल्ड मिल्क और हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन. Next, a 10-year-old patient presents with a history of trauma to the tooth 2-2 and sensitivity to percussion with respect to 2-1. How will you manage this condition? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है 2-2 को, तो उसकी रीवेस्कुलराइजेशन हम कर सकते हैं. ठीक है, और सेंसिटिविटी टू परकशन है, जो परकशन कर रहे हैं तो मतलब नीचे एब्सेस वगैरह कुछ बन चुकी है, तो देयर यू विल नीड एन RCT. ठीक है, the given question suggests that the trauma would have occurred previously in the region of 2-2 and the root completion of the lateral incisors occurs by
11 years, so the tooth is immature. So pulp revascularization is used for the necrotic or immature permanent teeth. Even if the pulp has lost its vitality, residual pulp stem cells are able to survive. And the tooth that is 2-1 is sensitive to percussion, suggests the apical periodontitis. ठीक है, अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो चुकी है, अगर परकशन के लिए वो पॉजिटिव है तो वहाँ पे RCT will be indicated. For decades, the apexification technique with calcium hydroxide have proven its effectiveness in solving these problems. It is mostly studied and is less expensive technique to induce a calcified apical barrier with a success rate of 74% to 100%. However, this technique, which is considered for a long-term procedure, 6 to 24 months to obtain an apical barrier, does not increase the thickness or the length of root wall and make the tooth fragile and susceptible for future fractures. Next question is, a 6-year-old child has sustained trauma to his face. Anterior दांत affect हुए. The image shows intraoral and radiographic findings. Classify the condition as per Ellis and Davis classification. देखो 6 साल का बच्चा है तो सिर्फ एक ही परमानेंट टूथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुंह के अंदर, दैट इज द परमानेंट फर्स्ट मोलर. ठीक है, और बाकी सारे डेसिडुअस टूथ होंगे. तो अगर यहाँ पे एंटीरियर दांत में हमें चोट लगी हुई है तो इट विल कम अंडर एलीज क्लास 9. ठीक है, क्योंकि डेसिडुअस टूथ को कोई भी चोट लगती है दैट विल बी कैटेगराइज अंडर एलीज क्लास 9. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंजरी फ्रॉम द रेडियोग्राफ. तो इसमें टूथ जो है वो अपनी जगह पे लग रहा है, लेकिन इट इज स्लाइटली एट अ डिफरेंट एंगुलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टीथ इन द रेडियोग्राफ 2D एंगुलेशन में. सो टूथ इज लाइकली टू बी लेटरली लक्सेटेड. ठीक है, द टूथ इज फ्रीक्वेंटली इमोबाइल एज द एपेक्स ऑफ द रूट इज लॉक्ड in by the bone fracture. Percussion will give high metallic and kylotic sound in this tooth. Likely there will be no response to pulp sensitivity test. ठीक है, a widened PDL space which is seen best on the radiograph taken with the horizontal angle shift or occlusal exposures will be there on the radiographic appearance. Salivary vaccines is based on which antibody? देखो saliva में कोई भी antibody जो based होती है that is mostly for IgA. ठीक है, सलाइवरी वैक्सीन में हमेशा IgA इंक्रीज करती है. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद रीसेंट हिस्ट्री ऑफ डेंचर फैब्रिकेशन रिपोर्ट्स टू डेंटिस्ट इन 5 days विद द फॉलोइंग कंप्लेंट्स. सबसे पहले उसको चैटरिंग साउंड्स आ रही है, जनरलाइज सोरनेस हो गई है सारी रिज पे, टायर्डनेस हो गई है आफ्टर वेयरिंग द डेंचर फॉर 2 to 3 hours. ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद उसको मतलब थक जाता है उसका मुँह. तो इसमें कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन शो करते हैं? ये तीनों फैक्टर, चैटरिंग साउंड, जनरलाइज सोरनेस ओवर द रिज, टायर्डनेस आफ्टर वेयरिंग द डेंचर फॉर 2 to 3 hours, ये तीनों वर्टिकल डायमेंशन का इंक्रीज जो है उसे शो करते हैं. ठीक है, ओल्ड फेस लुक हो जाती है, दैट इज सीन इन वर्टिकल डायमेंशन, जो बहुत ज़्यादा छोटा होगा. अगर हम वर्टिकल डायमेंशन बहुत ज़्यादा छोटा कर देते तो ठोड़ी जो होगी वो ज़्यादा क्लोज करेगी, तो दैट विल शो अ ओल्ड फेस लुक. Relative inability of a material to deform plasticity before it fractures is known as what? It is known as brittleness. That is the relatively inability of a material to deform plastically. जो मटेरियल लचीला नहीं है और वो फ्रैक्चर कर जाता है अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे, टेंशन या लगाएंगे या फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो दैट इज नोन एज ब्रिटलनेस. All of the following are the processing waxes except what? Utility wax is a processing wax, TT wax is a processing wax, and boxing wax is also a processing wax. But casting wax is not a processing wax. तो odd one out में हमारे पास casting wax को हम बाहर निकाल देंगे. So what is true about PMMA? Polymethyl के लिए क्या ठीक है? तो इसमें नूप हार्डनेस नंबर होता है 18 to 20. ठीक है, डेंसिटी होती है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.4 GPa. Modulus of elasticity is 2.4 GPa. PMMA was initially used as a dental material in 1937, although it must be acknowledged that the inferior mechanical properties, tensile strength, similar compression resistance, and modulus of elasticity between 2 and 3.1 gigapascal was there, and it is less as compared to the newer materials that are being used in the dentistry as a restorative material. The Moncel solution is used to control bleeding and is composed of what? Moncel solution, it is 20% ferric subsulfate. ठीक है, क्या होता है 20% ferric subsulfate is the Moncel solution, MONCEL solution. ये 20% फेरिक सबसल्फेट जो होता है वो यूज़ होता है फॉर कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स
for formation of a coagulum, ठीक है, and it is used as a hemostatic agent that is used to control bleeding from the small blood vessels and small capillaries. Next, for extraction in otherwise healthy adult with a carious molar with abscess formation, आपको कौन सा ड्रग दिया जाना चाहिए? You will give amoxicillin, ठीक है, अमोक्सिसिलिन ही सेफेस्ट ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन देने की ज़रूरत नहीं है, सेफिक्साइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेवोफ्लॉक्सासिन देने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज हेल्दी एडल्ट है, केरियस मोलर है, एब्सेस फॉर्म हो चुकी है, तो उसमें अमोक्सिसिलिन इज़ द ओनली चॉइस दैट इज़ टू बी गिवन अगर देना है तो, नहीं तो अमोक्स की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कैन ईजिली ड्रेन द एब्सेस देन दैट इज़ बेटर. इफ़ यू कैन नॉट ड्रेन द एब्सेस देन अमोक्सिसिलिन शुड बी गिवन. 1 month after extraction of maxillary molar tooth, patients come with a hole in a palate measuring 1 centimeter. ठीक है, maxillary molar tooth निकाला, अभी भी वो होल जो है वो 1 centimeter का प्रेजेंट है. What will you do? You will immediately choose a surgery to close the defect. All right. Nitrous oxide is considered safe for pharmacological behavior management, but it does have toxic effects. Which of the following side effects of the nitrous oxide? देखो, नाइट्रस ऑक्साइड मायोकार्डियल डिप्रेशन करवाता है, प्लस देयर इज डिफ्यूजन हिपोक्सिया. ठीक है, अगर नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा है, उसको ऑक्सीजन के साथ नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हिपोक्सिया हो जाता है. प्लस डिफ्यूज रैपिडली इनटू एनक्लोज्ड एयर फिल्ड स्पेसेस. ये एयर फिल्ड स्पेसेस में जाके डिफ्यूज़ करके वहाँ पे रैपिडली प्रेजेंट हो जाता है. तो ये तीनों साइड इफ़ेक्ट्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड के. नाद बाथ टेक्निक ऑफ नर्व ब्लॉक, ऑल कॉम्प्लिकेशंस कैन बी सीन एक्सेप्ट व्हाट. देखो, नाद बाथ टेक्निक के अंदर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस देखी जाती है, लैरिंजोस्पाज्म देखा जाता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन बी सीन. ठीक है, बट फेशियल नर्व एनेस्थीसिया विल नॉट बी सीन इन नाद बाथ टेक्निक, NADBATH टेक्निक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन्स शो जिंजाइवल अल्सरेशन अलॉन्ग द मिनिमल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इनमें से कौन सा जिंजाइवल अल्सरेशन शो करेगा विद मिनिमल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? तो A granulocytosis will do this. A granulocytosis is characterized by marked decrease in the number of circulating PMNLs, lesions of the throat and other mucous membranes, and ulceration and necrosis of gingiva that can resemble the necrotizing ulcerative gingivitis, and that can occur most commonly after chemotherapy in cancer patients or in patients with leukemia. ठीक है, द ओरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स विद A granulocytosis is primarily necrotizing, but it lacks severe inflammatory reaction that is seen in necrotizing ulcerative gingivitis. Next, the predominant factor or mechanism associated with the production of bite marks are, तो इसमें predominant factor होते हैं टूथ प्रेशर, टंग प्रेशर और टूथ स्क्रैप. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है वो बाइट मार्क के अंदर आ जाती हैं. नेक्स्ट, लीस्ट कैरियोजेनिक अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड इज व्हाट. 4 ऑप्शन दिए, कुक स्टार्च, रॉ स्टार्च, फ्रक्टोज, सुक्रोज. तो रॉ स्टार्च जो होता है दैट इज लीस्ट कैरियोजेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस. क्या चीज़? जिंजिवोस्टोमेटाइटिस, एक्यूट हर्पेटिक. इट्स कॉज्ड बाय व्हाट? इट इज कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1. कौन कॉज करता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू TNM स्टेजिंग के हिसाब से फॉर मैलिग्नेंट मेलानोमा ट्यूमर थिकनेस है 2.1 से 4 मिलीमीटर. इसको किस स्टेज में आप रखोगे? You will consider it under T3 stage. Bacteria adhere to the surface of tooth with the help of what? Bacteria adheres to the surface of the tooth with the help of dextran. Dextran के साथ adhere करता है. ठीक है, डेक्स्ट्रान जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है. ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जो कि मीडिएट करता है एडहेरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को टू द टूथ सरफेस, जिसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस अपना काम करना शुरू कर देता है, दैट इज डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ. पेशेंट प्रेजेंट्स विद ड्रेनिंग साइनस है पेशेंट के पास इन द सबमैंडिबुलर रीजन. हिस्टोपैथोलॉजी दी हुई है. ठीक है, अब बताओ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा इसमें? अगर ऐसी हिस्टोपैथोलॉजी आती है तो इट विल बी ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया. अगर ड्रेनिंग साइनस बन चुका है सब मैंडिबुलर रीजन में, हिस्टोलॉजी ऐसी है जैसी दिखाई रखी है, तो इट्स अ ग्राम पॉजिटिव anaerobic bacteria. Next, in cases of enamel hypocalcification, the quantity of enamel will what and the quality of enamel will be what as compared to the normal. देखो, hypocalcification अगर हो रही है enamel की तो quantity enamel की normal होगी, ठीक है, but the quality will be softer as compared to the normal. Quality of the enamel will be softer क्योंकि mineralization जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, ठीक है, so it will be softer than regular enamel. Which of the following is non-odontogenic lesion that grows rapidly in a child and then subsides on its own? Hemangioma एक non-odontogenic lesion है, पहले तो इन 4 ऑप्शन में से, और ये रैपिडली ग्रो करता है किसी बच्चे के अंदर और फिर बाद में सबसाइड कर जाता है ऑन इट्स ओन. Which of the following will be seen in oral tuberculosis? Oral tuberculosis में you will see low grade fever, you will see weight loss, you will see night sweats.
ठीक है। लेकिन पेनफुल अल्सर्स होते हैं इसके साथ, पेनलेस अल्सर्स नहीं होंगे। मोस्टली कंडीशन में पेनफुल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट पेनलेस अल्सर नहीं होता ओरल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। Next, read the following statements. Lateral incisor is the most common missing tooth in the maxillary arch. और second premolar जो होता है that is the most common tooth missing in the mandibular arch. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और हाइपोडोंशिया ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आफ्टर थर्ड मोलर्स की अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर आर्च में सेकंड प्रीमोलर सबसे ज़्यादा इजीली मिसिंग होता है और मैक्सिलरी आर्च में सबसे ज़्यादा इजीली मिसिंग जो दांत होता है दैट इज लेटरल इंसाइजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा। निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा के क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहले देयर इज अ कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई इन निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा। दूसरा है मल्टीपल ओडोंटोजेनिक सिस्ट्स विल बी सीन। पहला है कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई, दूसरा है मल्टीपल ओडोंटोजेनिक सिस्ट्स विल बी सीन, और तीसरा ऑप्शन है कि उसमें शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, फोर्थ मेटाकार्पल इज शॉर्टर। निमोनिक से याद करते हैं CODONS, कोडोन्स आता है इसमें निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा में। सी से आता है क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा। ओ से आता है ऑशियस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जैसे फ्यूज वर्टिब्रे होंगे, बाइफिड रिब्स, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल्स एंड फ्लेम शेप्ड एरियाज इन फैलेंजेस एंड ट्यूबुलर बोन्स ऑफ द आर्म्स, ठीक है। उसके बाद डेंटल में मल्टीपल ओडोंटोजेनिक सिस्ट आती हैं, ओडोंटोजेनिक कैरेटोसिस्ट मल्टीपल आ जाती हैं, ठीक है। आंखों में कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती है, हाइपरटीलोरिज्म हो जाता है, एक्सोप्थैल्मोसिस एंड हाइपरटीलोरिज्म कैन बी देयर। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, दैट इज कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई, ठीक है। और सेक्सुअल कंडीशंस में ओवेरियन सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, दैट इन फीमेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस शोज बोथ सब एपिथेलियल एंड इंट्रा एपिथेलियल क्लेफ्टिंग। सब एपिथेलियल और इंट्रा एपिथेलियल क्लेफ्टिंग आपको पैरा नियोप्लास्टिक पैम्फिगस के अंदर देखी जाती है, पैरा नियोप्लास्टिक पैम्फिगस के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन। चार ऑप्शन दिए, ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा, ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, सीमेंटोब्लास्टोमा, ग्रैनुलर सेल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। तो चारों ही हमारे मेसेनकाइमल ओरिजिन के होते हैं, ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा, ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, cementoblastoma and glandular cell odontogenic tumor, all are of mesenchymal origin. Next, we have an OPG showing unerupted central incisor which is blocked by radiopaque mass. Unerupted central incisor blocked by radiopaque mass. Which of the following is not the cause of it? देखो, mesodense can be a cause of it, compound odontome can be a cause of it, complex odontome can be a cause of it, ठीक है। बट डेंटिजरस cyst किसी चीज़ को इम्पैक्टेड नहीं रखता है। डेंटिजरस cyst इज एसोसिएटेड विद एन इम्पैक्टेड टूथ, ठीक है, मगर ये इम्पैक्शन बना के नहीं रखता है, वो इम्पैक्टेड दांत के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो दांत इम्पैक्टेड है ड्यू टू सम रेडियो ओपेक मास, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डेंटिजरस cyst इज थर्ड मोलर रीजन फॉलोड बाय मैक्सिलरी कैनाइन। अदर साइट्स आर एक्सट्रीमली रेयर एंड दे हैव नंबर्ड less cases that are reported in literature. Moreover, no radiolucency is seen in the OPG with the radio-opaque mass. Next, parents of a patient visits with the patient, that is a natal patient, and he has sublingual ulcers due to the presence of teeth. So what is the cause? It is the natal teeth are the cause, ठीक है, and this is the traumatic ulceration on the ventral surface of the tongue, frenum or the lip, and is most commonly associated with the natal teeth. ठीक है, ulceration of the sublingual area in infants was first described in 1857 by Cardelli. In 1881 and 1890, Riga and Fede described the lesion histologically and is subsequently been known as Riga-Fede disease from then. Although a more appropriate term for Riga-Fede disease is neonatal sublingual traumatic ulceration. Next image we have is identify the lesion. ठीक है, it is odontogenic keratocyst and that is also orthokeratinize, ठीक है, ऑर्थोकेरेटनाइज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट आई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, जिसमें कि ऐसे पर्पल स्टेनिंग जो है दांत के ऊपर हो गई है, पूरे इनामल के ऊपर हो गई है। इट इज मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन और मोलर इंसाइजल हाइपोप्लेजिया। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 and was used to describe the clinical appearance of enamel hypomineralization of systemic origin affecting one or more permanent first molars and are also associated frequently with affected incisors. Not originating from the dental follicle is what? देखो, पल्प जो है वो कभी भी डेंटल फॉलिकल से ओरिजिनेट नहीं करता। एल्वियोलर बोन ओरिजिनेट फ्रॉम द डेंटल फॉलिकल, सीमेंटम ओरिजिनेट फ्रॉम द डेंटल फॉलिकल एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द डेंटल फॉलिकल, but pulp does not originate from the dental follicle. Next, the structure attaching the basal layer to the basal lamina. ऐसे स्ट्रक्चर जो कि अटैच करते हैं बेसल सेल लेयर को टू द बेसल लमाइना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम्स,
क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स। नेक्स्ट, द प्रीडोमिनेंट कोलेजन प्रेजेंट इन डेंटिन एंड बोन इज व्हाट। प्रीडोमिनेंट जो कोलेजन होता है जो कि डेंटिन और बोन दोनों में प्रेजेंट है, दैट इज टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, टाइप 1 कोलेजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ कोलेजन इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन द पीडीएल। पीडीएल के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा कोलेजन आपको मिलता है, टाइप 1 कोलेजन ही पीडीएल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, टाइप 1 collagen is the most abundant in lamina propria and principal fibers of periodontal ligament. Type 1 collagen is fibrillar in nature, principal fibers of periodontal ligament. Type 3 जो होता है उसके बाद आता है, टाइप 1 के बाद आता है टाइप 3, that is reticular fibers of the PDL. फिर टाइप 3 के बाद आता है टाइप 4, that is membrane associated fibers, जिसमें बेसल लमाइना और बेसल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात आ जाती है। टाइप 4 के बाद आता है टाइप 12। ठीक है, टाइप 12 आता है टाइप 4 के बाद, दैट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेरियोडोंटल फाइबर्स ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेरियोडोंटल फाइबर्स ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन एंड मोल्डिंग ऑफ द शेप ऑफ द रूट। HERS, HERS, that is Hartwig epithelial root sheet. It is responsible for initiation of root formation and molding of the shape of the root. ठीक है, HERS. Next, Weill's zone of pulp is seen in what? Weill's zone of pulp जो होती है, WEIL zone of pulp, it is seen in cell-free zone. Cell-free zone के अंदर देखी जाती है। Next, which of the following is happening in the given clinical scenario from A to D? तो सबसे पहली इमेज में हमारे पास हुई है अवल्जन। अवल्जन के बाद इसका स्प्लिंटिंग करा है। ठीक है, स्प्लिंटिंग के बाद इसका आरसीटी करा गया। दिस इज स्प्लिंट्स, ये जो दांत के अराउंड दिखाई दे रहे हैं, दिस इज स्प्लिंट्स जो दांत के अंदर है, दैट इज आरसीटी इज डन। आरसीटी के बाद ये जो है फाइनली एंकाइलॉस कर गया है, दैट इज एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन हैज अकर्ड हियर, दैट शोज एंकाइलोसिस इन दिस टूथ। ठीक है, हीलिंग विद इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन रिलेटेड रिजॉर्प्शन, इसमें माइनर इंजरीज होती हैं तो पीडीएल, लिगामेंट एंड सीमेंटम ड्यू टू ट्रॉमा, and there is contamination between the resorption cavities of the root stub. ठीक है, it is specifically frequent and aggressive after reimplantation from 6 years to 10 years of age due to the wide dentinal tubules present within the cementum. Next, rewarding a child for his good behavior comes under which theory of learning and development of behavior? It comes under operant conditioning. ठीक है, जिसमें हम चाइल्ड को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड करते हैं, it comes under operant conditioning. ओके, नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ KRI पेस्ट इज व्हाट? KRI पेस्ट का कॉम्पोजिशन होता है आइडोफॉर्म, पैराक्लोरोफिनॉल, कैम्फर, मेंथॉल। आइडोफॉर्म, पैराक्लोरोफिनॉल, कैम्फर एंड मेंथॉल, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ KRI पेस्ट। विच क्राई मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ सायरन लाइक साउंड? सायरन लाइक साउंड जो है वो मैनिफेस्ट होती है इन द ऑब्स्टिनेट क्राई। ठीक है, ऑब्स्टिनेट क्राई इज अ सायरन लाइक क्राई विदाउट टीयर्स एंड मे बी accompanied by kicking and biting. This cry is associated with temper tantrum motivated by anxiety. This child has to be treated with firmness and gentle forces at times. Next, bruxism is seen in which type of cerebral palsy? Bruxism जो है that is seen in dyskinetic type of cerebral palsy. Dyskinesia या फिर एथिटोसिस बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं क्लोर एथिटोसिस। Bruxism is commonly observed in patients with ethetoid cerebral palsy. Severe occlusal atresion of the primary and permanent dentition may be noted, with the resulting loss of the vertical interarch dimension, temporomandibular joint disorders, and may be a sequel of this condition in the adult patients. Next, all except one are indications for both surgery first orthodontic approach. ठीक है, सर्जरी फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक अप्रोच जो है वो माइल्ड कर्व ऑफ स्पीड के अंदर करी जाती है। ठीक है, माइल्ड लोकर एंटीरियर क्राउडिंग के अंदर करी जा सकती है। ठीक है, माइल्ड रेट्रोक्लिनेशन प्रोक्लिनेशन ऑफ इंसाइजेस के अंदर करी जा सकती है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सर्जरी फर्स्ट अप्रोच इंक्लूड पेशेंट्स दैट आर नीडिंग डेफिनेट डीकम्प्रेशन, पेशेंट विद सीवियर क्राउडिंग, arch incoordination, and patients with severe vertical or transverse discrepancies and temporomandibular joint disorders. ठीक है, वहाँ पे जो सर्जरी फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेटर होती है वहाँ पे पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आप सर्जरी करते हैं सो एज टू फाइनली स्टोर एट द सेम साइट। ठीक है, जिस कंडीशन में है उसको फाइनली उस पोजीशन पे लाने के लिए आप फाइनली सर्जरी करते हैं। Which point can be located without error on a lateral cephalogram? Without error आप नेजियन को easily
लोकलाइज कर सकते हो। नेजियन इज अ स्टेबल एनाटॉमिकल लैंडमार्क एंड कैन इजीली बी डिमार्केबल ऑन लेटरल सिफेलोग्राम। द अदर्स आर कंस्ट्रक्टेड लैंडमार्क्स। नेजियन के अलावा जितने बाकी होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड लैंडमार्क होते हैं। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड विजिट्स यू, ठीक है, वो ऐसी क्लिनिकल पिक्चर लेके आया, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज एंटीरियर क्रॉसबाइट। तो हाउ विल यू मैनेज दिस केस? अगर आपको एंटीरियर क्रॉसबाइट वाला केस आ रहा है और 8 साल का बच्चा अभी, तो यू विल स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट विद रिमूवेबल अप्लायंस, ठीक है। एंटीरियर क्रॉसबाइट आर नॉर्मली इमीडिएटली ट्रीटेड एट अ यंग एज। द मेन गोल इन ट्रीटिंग द एंटीरियर क्रॉसबाइट इज टू टिप द affected maxillary tooth or teeth labally to a point where stable overbite relationship prevents relapse, ठीक है। ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व लिंगुअल मूवमेंट ऑफ मैंडिबुलर टूथ, लेबियल मूवमेंट ऑफ मैक्सिलरी टूथ। या तो हम लिंगुअल मूवमेंट करवा सकते हैं मैंडिबुलर टूथ की, ठीक है, या फिर लेबियल मूवमेंट करवा सकते हैं मैक्सिलरी टूथ की, या फिर दोनों बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा बैलेंस में करवा सकते हैं। वेरियस टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू अचीव दिस गोल सच एज टंग ब्लेड्स, composite inclined planes, reverse stainless steel crowns, removable acrylic appliances with lingual springs and fixed appliances. Next, a child comes to you with a following intraoral picture, ठीक है, जिसमें कंप्लेन है ब्लीडिंग फ्रॉम द गम स्पेशली ड्यूरिंग ब्रशिंग एंड फॉलोइंग एन इंट्राओरल पिक्चर। हाउ विल यू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट टू द पेशेंट? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आप क्या करते हैं? यू गो फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन दिस ओवर बाइट और डीप बाइट केसेस। नेक्स्ट, द इमीडिएट मैनेजमेंट वुड बी स्केलिंग एंड ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। हाउएवर, सिंस द पेशेंट हैज a cover bite or overbite, then there could be palatal trauma from the lower incisors that could be causing gingival inflammation as well as, ठीक है, as well as जो हमारी जो buccal mucosa है वो maxillary incisors कर सकते हैं, and this would be best managed orthodontically, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग जब पेशेंट आपके पास इमीडिएटली आया तो स्केलिंग एंड ओरल हाइजीन मेंटेनेंस प्लस एक्सप्लेनिंग द कंडीशन टू द पेशेंट इज ऑफ utmost importance. Long term retention is not required in what? Long term retention is not required in anterior crossbite. एक बार अगर क्रॉसबाइट ठीक हो जाती है तो वहाँ पे रिटेंशन आपको ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ रिटेंटिंग होती है उसके बाद। बट इट इज़ रिक्वायर्ड इन नैरो आर्च केसेस, इट इज़ रिक्वायर्ड इन क्लेफ्ट पैलेट केसेस, इट इज़ रिक्वायर्ड इन क्लास 2 मालोक्लूजन केसेस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन मिड लाइन डायस्टीमा केसेस। ऑलराइट, करेक्टेड एंटीरियर क्रॉसबाइट्स with adequate overbite are usually stable and limited retention with appliances usually suffice, and long-term retention is not usually required as mentioned in other cases in the cases of anterior crossbite correction. Bolton ratio is 87.3 of all the teeth combined. It means what? इसका मतलब है maxillary tooth material जो है वो एक्सेस में है। देखो, overall ratio of sum of mandibular 12 divided by maxillary 12 teeth into 100, इसको हम कहते हैं बोल्टन्स रेशियो। एवरेज वैल्यू आती है 91.3, ठीक है, एंड अ वैल्यू लेस देन 95.3 इट इंडिकेट्स दैट द मैक्सिलरी टोटल मटेरियल इज एक्सेस। और अगर ये ज़्यादा आती है फ्रॉम 91.3 मतलब होता है कि मैंडिबुलर एक्सेस में। नेक्स्ट, फॉलोइंग इमेज ऑफ अ स्क्वैमस ग्रोथ कर्व, जिसमें कि एस शेप जो ग्रोथ कर्व होता है, दैट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ गिवन फॉर जनरल टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। जनरल बॉडी कर्व जो होता है दैट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, वेट हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी हो गया। दिस कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मसल मास, द स्केलेटन, एक्सेप्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्कल एंड फेस, ठीक है। इसमें जो ग्रोथ जनरल ग्रोथ कर्व में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है एंड यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। द ग्रोथ पैटर्न is generally S-shaped or sigmoid growth curve. It has 4 phases. First हमारे पास आता है rapid growth phase in infancy and early childhood. उसके बाद steady growth phase होता है but constant growth phase होता है during the middle childhood. फिर adolescent के दौरान एक rapid growth spurt हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से ये एक steady but constant growth show करता है और उसके बाद ये stop कर जाती है growth, ठीक है। Next, for retraction of incisors by 1 millimeter, how much space is required? अगर हमें इंसाइजर को 1 मिलीमीटर पीछे खींचना है तो हमें 2 मिलीमीटर का स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट है, फॉर एवरी 1 मिलीमीटर ऑफ इंसाइजर दैट इज टू बी रिट्रैक्टेड 2 millimeter of space is required. Next, which of the following arch analysis doesn't measure width of normal incisors? हकावा एनालिसिस जो है वो width of normal incisors को इंक्लूड नहीं करता। हकावा GW ने इंट्रोड्यूस किया था रेडियोग्राफिक मेथड इन 1964. In this method he used an equation related to the measurement of teeth that are erupted to their radiographic images to get proportion sizes of unerupted teeth to overcome the effect of radiographic distortion. ठीक है, और हकावा में ये नॉर्मल इंसाइजर्स की जो विड्थ है उसको मेजर या मेंशन नहीं करता। नेक्स्ट, क्लास 2 डिव 1 मालोक्लूजन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? क्लास 2 डिव 1 मालोक्लूजन इज एसोसिएटेड विद अ हाइपोटोनिक लिप,
ठीक है। क्लास 2 डिप 1 में जो एंटीरियर्स होते हैं वो आगे को प्रोक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइपोटोनिक अपर लिप जो है वो प्रेजेंट होता है, हाइपोटोनिक अपर लिप। Which of the following appliance cannot be used for management of 5-year-old child with the following clinical picture? इसमें आप ओरल स्क्रीन नहीं दे सकते एंड लिप बम्पर के नहीं दे सकते, ठीक है। दे कैनॉट बी यूज। आप इसमें पैलेटल क्रिप दोगे, टंग रेक्स दे सकते हो। द हैबिट इज दैट ऑफ थंब सकिंग एंड हैबिट ब्रेकर्स फॉर थंब सकिंग इंक्लूड रिमूवेबल क्रिब, फ्लैट क्रिब विद थंब सकिंग अप्लायंस, वर्टिकल क्रिब थंब सकिंग अप्लायंस, ठीक है, या फिर टंग रेक दे सकते हैं, और ब्लू ग्रास अप्लायंसेस में देते हैं। इसमें लॉन्ग आपका जो अंगूठा होगा, अंगूठे पे अल्सर भी बना हुआ है दांत की वजह से, ठीक है, प्लस देयर इज ओपन बाइट इन दिस पेशेंट, सो यू विल नॉट गिव ओरल स्क्रीन एंड लिप बम्पर इनिशियली, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें हैबिट को ब्रेक करना है, उसी के बाद हमारे बाकी चीज़ें जो है ट्रीटमेंट शुरू होगी। नेक्स्ट, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद पंच्ड आउट क्रेटर लाइक डिप्रेशन ऑन जिंजाइवा विच इज वाइटिश ग्रे कवरिंग ऑन इट, which has whitish gray covering on it, which is demarcated from the remainder of the gingival mucosa by a pronounced linear edema. What is it called as? इस whitish gray covering को क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं pseudo membrane, ठीक है। Its condition described in this case is ANUG, acute necrotizing ulcerative gingivitis. It has a whitish gray covering that is called as pseudo membrane, which is present on this punched out crater-like depressions on gingiva. Next, the forces of mastication are resisted by what? Forces of mastication are resisted by oblique group of fibers, ठीक है। Alveolar crest fibers extend obliquely from cementum just beneath the junctional epithelium to alveolar crest and prevent the extrusion of the tooth and resist the lateral tooth movements. Horizontal group of fibers जो होते हैं वो extend करते हैं at right angles to the tooth of the cementum to the alveolar bone, ठीक है। Oblique group of fibers जो होते हैं वो largest group of fibers होते हैं in the PDL, ठीक है। वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सीमेंटम इन अ कॉर्नल डायरेक्शन ऑब्लिकली टू द बोन। दे बियर द बरंट ऑफ वर्टिकल मैस्टिकेटरी स्ट्रेसेस एंड ट्रांसफॉर्म सच स्ट्रेसेस इनटू टेंशन ऑन द एल्वियोलर बोन। ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स की बात आ रही है। ऑब्लिक की बात आती है बात अपाइकल ग्रुप ऑफ फाइबर्स की। ये रेडिएट करते हैं इन रादर इरेगुलर मैनर फ्रॉम द सीमेंटम टू द बोन एट द अपाइकल रीजन ऑफ द सॉकेट एंड दे डू नॉट अकर इनकम्प्लीटली फॉर्म रूट्स में आकर नहीं करते हैं। जहाँ पे इनकम्प्लीटली फॉर्म रूट होती है वहाँ पे अपाइकल ग्रुप ऑफ फाइबर्स नहीं बने होते। उसके बाद बात आती है इंटर रेडिकुलर ग्रुप ऑफ फाइबर्स की। इंटर रेडिकुलर ग्रुप ऑफ फाइबर्स दे फैन आउट फ्रॉम द सीमेंटम टू द टूथ इन द फर्केशन एरिया ऑफ मल्टीपोरोटरी टूथ। इंटर रेडिकुलर क्या करते हैं? ये फैन आउट करते हैं फ्रॉम द सीमेंटम टू द टूथ इन द फर्केशन एरिया ऑफ मल्टी रूटेड टूथ। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सूचर टेक्निक। इसमें डायरेक्टली एक सिंपल आप लूप बना रहे हो, तो इट इज अ सिंपल लूप सूचर, ठीक है। Which of the following is not a disclosing agent? Cetyl pyridinium chloride, it is not a disclosing agent. It is a cationic quaternary ammonium compound used in some type of mouthwashes, toothpaste, lozenges and throat sprays. Cetyl pyridinium chloride, ठीक है। ये ब्रेथ स्प्रेज के अंदर भी यूज़ किया जाता है और नेजल स्प्रे के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक दैट किल्स द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हमारे पास डिस्क्लोजिंग एजेंट कौन कौन से? एरिथ्रोसिन इज अ डिस्क्लोजिंग एजेंट, two-tone dye is a disclosing agent, mercurome is a disclosing agent. Next, which statement is false is related to trauma from occlusion? देखो ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन कॉजेज वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस। पीडियल स्पेस की वाइडनिंग करवा देता है पहली चीज। ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन कैन कॉज फनल शेप डिफेक्ट इन द क्रेस्ट ऑफ द बोन। कैसे डिफेक्ट कॉज करवाता है? फनल शेप डिफेक्ट कॉज करवाता है इन द crest of the bone. Trauma from occlusion does not initiate pocket formation. TFO pocket formation initiate नहीं करवाता है, ठीक है। अब जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन अफेक्ट्स द मार्जिनल जिंजाइवा। तो ये गलत स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन जो है वो डायरेक्टली इनिशिएट नहीं करा सकता जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन को। ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन अकर्स इन द सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है, एंड डज नॉट अफेक्ट डायरेक्टली द जिंजाइवा। The marginal gingiva is unaffected by trauma from occlusion because its blood supply is not affected by trauma from occlusion even when the vessels of the periodontal ligament are obliterated by excessive trauma from occlusion forces. Still the marginal gingiva की blood vessels जो होती है वो intact होती है। तो ये कहना गलत होगा कि trauma from occlusion से marginal gingiva affect हो रहा है। Next, which of the following is the most common clinical sign in periodontal trauma resulting from occlusion? इसमें सिर्फ trauma from occlusion ही बोल रहा है। सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइन जो कॉमन होता है फ्रॉम ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, इट इज इंक्रीज्ड टूथ मोबिलिटी, ओके। इंक्रीज टूथ मोबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन थिंग। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कॉलोनाइजर? सेकेंडरी कॉलोनाइजर स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस नहीं होता है, ठीक है।
Streptococcus sanguis is a primary colonizer. बाकी जितने भी जैसे Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Agribacter Actinomycetes comitans, they are all secondary colonizers, but Streptococcus sanguis is the primary colonizer. So which type of movement is seen in piezoelectric ultrasonic tip? Piezoelectric ultrasonic tip में linear type of movement होती है, ठीक है. Piezoelectric ultrasonic tip में linear type of movement होती है. Next, what is the frequency of electric currents used in electrosurgery? The frequency of electric current used in electrosurgery is 1.5 to 7.5 megahertz. ठीक है, 1.5 से 7.5 मेगाहर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोसर्जरी. नाउ वैल्यू बेस्ड QS फ्रॉम कैरेंजा, इट्स बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि 1.7 टू 7.5, ये डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन जिंजाइवल प्रेजेंटेशन दैट इज प्रेजेंट इन एड्स पेशेंट इज व्हाट? इनमें ओरल कॉम्प्लिकेशन जिंजाइवल जो होती है दैट इज लीनियर जिंजाइवल एरिथमा इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन दीज पेशेंट्स. लीनियर जिंजाइवल एरिथमा is a candida associated lesion that has been described in HIV patients. It is characterized by linear erythematous lesions affecting the gingiva of the anterior teeth. It may not be accompanied by symptoms, but in other patients it may be associated with discomfort and bleeding. It is believed to be due to subgingival colonization of the candida species in the patient with inadequate activity of polymorphic nuclear neutrophils. This lesion has been described as the predictor of immunosuppression in these patients. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट कोलेजन? कोलेजन के लिए ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं. कोलेजन इज अ कॉमन फाइब्रस प्रोटीन. कोलेजन जो है वो कॉमन फाइब्रस प्रोटीन है. कोलेजन के पास ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इट हैज अ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर. उसके बाद कोलेजन कंटेन्स प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. कोलेजन के अंदर प्रोलीन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, ठीक है. बट फिनाइल एनिलिन इज मेजर अमीनो एसिड इन कोलेजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है. कोलेजन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें ट्रिपल हेलिक्स होता है, फिब्रिल प्रोटीन होता है. ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन मेजर अमीनो एसिड होते हैं जो कि कोलेजन को बनाते हैं, ठीक है. ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन मेजर अमीनो एसिड. और फिनाइल एनिलिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट में प्रेजेंट होता है. सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट कि फिनाइल एनिलिन हमारे पास कम होता है इसके अंदर अमीनो एसिड कोलेजन के अंदर. नेक्स्ट, सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है. कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस. द इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस इज कंसिस्टिंग ऑफ 75.9% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, 3.1% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. नेक्स्ट, विच कॉम्पोनेंट इज प्रेजेंट मोर इन सबजिंजाइवल कैलकुलस दैन इन सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस? मैग्नीशियम विटलोकाइट. मैग्नीशियम विटलोकाइट वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन सब जिंजाइवल कैलकुलस दैन इन सुपर जिंजाइवल कैलकुलस. विट लोकाइट मतलब जो लॉक जिसमें आ गया वर्ड वो नीचे प्रेजेंट होगा, सब जिंजाइवल कैलकुलस के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. द रोल ऑफ पेरिडोंटल थेरेपी इन प्रेग्नेंट पेशेंट विद रेफरेंस टू एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स APOs हैज़ गिवन अनक्लियर एविडेंस रिगार्डिंग द रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ APO, ठीक है. स्टेटमेंट 2 कहती है दैट इफ दिस कोरिलेशन गेट्स प्रोवाइडेड इन नियर फ्यूचर this risk factor can be controlled because it is modifiable and preventable, ठीक है. अगर इसको हम कोरिलेशन को प्रूव कर देते हैं तो इस रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ओके. गिवन द एविडेंस इज कन्फ्लिक्टिंग, इट इज currently unclear whether the periodontal therapy provided during the gestation has a beneficial effect on pregnancy outcomes. What is clear is that the scaling and root planing provided us during second and third trimester of gestation are safe procedures. Every intervention trial published to date has shown that scaling and root planing during pregnancy are associated with either a decrease or a no chance in adverse pregnancy outcome rates. Next, see the following design of the mucosal pontic. इसमें आता है हमारे पास रिज लैप या फिर और ये रिज लैप के साथ हमारे पास है इंसाइजर, ठीक है. दिस इज द रिज लैप डिजाइन वेयर द contact is majorly on the buccal side. It is designated as a ridge lap to adapt closely to the ridge. It is avoided because it is difficult to maintain and often leads to inflammation of the tissues that are in contact. ठीक है. Next, E-dentulous patient presents with an elliptical palatal tori extending up to the junction of hard and soft palate. How will you manage to fabricate the complete denture? यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा ऑफ द टोराई टू इम्प्रूव द डेंचर फाउंडेशन इन द एरिया फॉर इफेक्टिव रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डेंचर. नेक्स्ट, द मीडियल बाउंड्री ऑफ रेट्रोमोलर पैड एरिया इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? तो मीडियल बाउंड्री बनती है बाय द टेरिको मैंडिबुलर रैफे, ठीक है. इट इज बाउंडेड पोस्टीरियरली
बाय द टेंडन्स ऑफ टेम्पोरालिस, जो रेट्रोमोलर पैड एरिया होता है वो पोस्टीरियरली बाय द टेंडन्स ऑफ टेम्पोरालिस बनता है, और लेटरली बाय बक्सीनेटर एंड मीडियली बाय टेम्पोरोमैंडिबुलर रैफे एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पोस्टीरियर में कौन है? टेम्पोरालिस है, लेटरल में कौन है? बक्सीनेटर है, मीडियल में कौन है? टेरिगोमैंडिबुलर रैफे है प्लस सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है। A patient on clinical examination shows deviation of the mandible on the mouth opening. Identify the condition based upon the radiological picture. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट कॉन्डाइलर हाइपरप्लेजिया। ठीक है, दिस इज आवर राइट साइड, दिस इज आवर लेफ्ट साइड, अगर हम पेशेंट को सामने से देख रहे हैं तो। ठीक है, ऑपोजिट रिवील्स gross enlargement of the left condyle and loss of anticonial notch with downward bowing of the inferior border of the mandible and is suggestive of condylar hyperplasia. Condylar hyperplasia of the mandible is an uncommon idiopathic disorder of non-neoplastics origin of the jaw characterized by increased volume of condyle unilaterally or bilaterally, leading to facial asymmetry, mandibular deviation, molar occlusion, articular dysfunction, and generally it is present without pain. It usually presents as a bony swelling in the left preauricular region and deviation of the lower jaw towards the opposite side. A 25-year-old patient with a history of trauma to the face presented with binocular diplopia and restriction of eye movement. ठीक है, ट्रॉमा के बाद बाइनोकुलर डिप्लोपिया हो गया और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आई मूवमेंट हो गई। देयर इज अ स्टेप डिफॉर्मिटी ओवर द इंफ्रा ऑर्बिटल रिम, हाउ विल यू मैनेज द कंडीशन? क्योंकि स्टेप डिफॉर्मिटी है ओवर द इंफ्रा ऑर्बिटल रिम, तो यू विल manage it by reduction with mini plates and orbital floor reconstruction you will do. Next, a 2-year-old child came to the department with a history of fall from the bed and pain in the TMJ region whenever he drinks milk. What advice will you give to the patient and the parents? देखो यहाँ पे तो पेरेंट्स को एडवाइस देनी पड़ेगी बिकॉज द चाइल्ड इज ऑफ 2 years of age. तो आपको एक्टिव माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवानी है. The following features could be suggestive of condylar injury or condylar fracture. As a result of this case, all the pediatric condylar injuries, active physiotherapy should be initiated to prevent the formation of joint adhesions or ankylosis later in life. If the radiograph reveals a severely displaced fracture, open reduction will have to be done. अगर सीवियरली डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे ओपन रिडक्शन या फिर सर्जरी करनी पड़ती है. नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्लाइटली रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग. स्लाइटली रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग है एंड मैक्सिमम अप टू 20 to 25 मिलीमीटर उसकी माउथ ओपनिंग आ रही है. ऑन पैल्पेशन देयर इज नो पेन. पैल्पेट जब हम कर रहे हैं तो कोई पेन नहीं है इन द टीएमजे एरिया. व्हाट इज द कॉज? ठीक है, द कॉज इज एडहीजन और फ्यूजन ऑफ कॉन्डाइल टू द आर्टिकुलर डिस्क. ठीक है, एडहीजन और फ्यूजन ऑफ द कॉन्डाइल टू द आर्टिकुलर डिस्क, उसकी वजह से रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग हो गई. यहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किसके साथ फ्यूज कर रहा है. कॉन्डाइल फ्यूज कर रहा है विद द आर्टिकुलर डिस्क. नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द पेन इन द टीएमजे रीजन. ऑन एग्जामिनेशन फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स वर नोटेड. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव माउथ ओपनिंग थी, डेविएशन ऑफ जॉ ऑन एक्सेंट्रिक मूवमेंट था. ठीक है, प्लस देयर इज क्लिकिंग इन द जॉइंट एट द सेम पॉइंट ऑफ द माउथ एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरनल डिस्क डिरेंजमेंट शो करते हैं. What do they show? Internal derangement of the temporomandibular joint. They may be defined as disruption within the internal aspects of the TMJ in which there is displacement of the disc from its normal functional relationship with the mandibular condyle and the articular portion of the temporal bone. The complications of Nath-Bath technique of nerve block are all except what? Nath-Bath technique में dyspnea हो जाता है, dysphonia हो जाता है, vocal cord paralysis होती है. There is dyspnea, there is dysphonia and there is vocal cord paralysis, but paralysis of tongue will not occur in Nath-Bath technique. Next, the best method for moisture control during procedures is what? Rubber dam is the best method for moisture control and is the best method of isolation among all the methods that we use. ठीक है, a lady presents with following radiographic picture and has sensitivity only on eating ice cream and otherwise she feels normal. मतलब ठंडे पे उसको सेंसिटिविटी है. द ट्रीटमेंट प्लान वुड बी व्हाट? ये रेडियोग्राफ दिया गया है इस लेडी का. ठीक है, तो इसमें यू विल डू अ थर्मल सेंसिटिविटी टेस्ट टू रूल आउट विच मोलर हैज साइंस ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस फॉलोड बाय पल्प कैपिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ दैट मोलर. ओके, नाउ वेयर व्हेन देयर इज इंडिकेशन और प्रेजेंस ऑफ डीप कैरीज तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है पल्प को. ठीक है, बाय एनी फॉर्म. तो अगर कोल्ड हमारा डायरेक्टली नीचे तक जा रहा है पल्प तक तो वी नीड टू प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम द कोल्ड फूड बाय इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पल्प कैपिंग, जैसे भी हमने करना है. नेक्स्ट, 1830 फ्लूटेड बर इज यूज फॉर व्हाट? 1830 फ्लूटेड बर इज यूज फॉर फिनिशिंग. किस चीज़ के लिए यूज होता है? फिनिशिंग के लिए. फिनिशिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय 1830 फ्लूटेड कार्बाइड बर बिटवीन 80
मतलब 8 से 20 माइक्रोन का इसका साइज़ होता है, ठीक है। बर की जो कटिंग साइज़ होती है उसकी 8 to 20 माइक्रोन होती है, एंड इट इज़ नेम्ड एज 18 to 30 फ्लूटेड कार्बाइड बर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोलीन रिच प्रोटीन्स? प्रोलीन रिच प्रोटीन जो होती हैं वो एडहेयर कर जाती हैं टू द एसिड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोकाई एंड हेल्प्स इन केरीज प्रिवेंशन, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास प्रोलीन रिच प्रोटीन्स होती हैं, जितनी ज़्यादा पीआरपीज हमारे पास प्रेजेंट होगी, द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ बेसिक रेजिड्यूज एडहेरेंट टू द एसिड प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड देयरफॉर the more efficient will be the acid neutralization and decrease in the incidence of caries in these patients. Okay. Next, a 60-year-old female patient presents with eczematous itching lesions. Biopsy revealed subepidermal cleft with direct immunofluorescent test showing linear C3 and IgG deposition along with the basement membrane zone. What is the likely diagnosis? द डायग्नोसिस विल बी बुल्लस पैम्फिगॉइड, ठीक है। क्या हुआ इसको? बुल्लस पैम्फिगॉइड हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ IgG C3 और बोथ इन अ लीनियर फैशन अलॉन्ग द BMZ, ठीक है, इज सीन इन बुल्लस पैम्फिगॉइड, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन पैम्फिगॉइड के अंदर भी देखा जाता है और एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा के अंदर भी देखा जाता है, और बुल्लस सिस्टमिक एरिथमेटस लूपस एरिथमेटोसिस के अंदर भी देखा जाता है। इट इज़ द रिसेंटली डिस्क्राइब्ड एंटी P200 पैम्फिगॉइड। नेक्स्ट, अ 40-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद फॉलोइंग इंट्राओरल फाइंडिंग्स। व्हाट इज इट? इट इज़ टोबैको पाउच केराटोसिस, ठीक है। 40 साल का पेशेंट है और कोई चीज़ में दिखाई नहीं है, सिर्फ टोबैको पाउच केराटोसिस का पेशेंट दिखाई दे रहा है हमें। टोबैको पाउच केराटोसिस है डिजीज़, ठीक है। व्हाट विल यू विल डू अ क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश जो कि आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे, टोबैको सेसेशन काउंसलिंग करवाओगे एंड रिकॉल आफ्टर 1 month टू असेस द स्टेटस ऑफ द लीजन। Tobacco pouch keratosis or smokeless tobacco induced keratosis is development of a white mucosal lesion in the area of tobacco contact. The lesion develops on habitual chewing of the snip dipping tobacco. Infectious mononucleosis is caused because of what? Infectious mononucleosis is caused due to Epstein-Barr virus infection. Next, a 1-year-old child presents with fever, malaise and gingival stomatitis. Identify the condition. 1 साल का बच्चा है, acute hepatic gingivostomatitis उसको रखी है। Acute hepatic gingivostomatitis is a manifestation of a herpes simplex virus type 1. It is characterized by high-grade fever, painful oral lesions. While herpetic gingivostomatitis is most common cause of gingivostomatitis in children before the age of 5, it can occur in adults as well. नेक्स्ट, निकोल्स्की साइन इज पॉजिटिव इन व्हाट? निकोल्स्की साइन आपका पॉजिटिव होता है पैम्फिगस वल्गारिस में, टॉक्सिक एपिडर्मोलिसिस नेक्रोलिसिस में एंड स्केल्ड स्किन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। स्केल्ड स्किन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एंड पैम्फिगस वल्गारिस, इनके अंदर निकोल्स्की साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। बट बुल्लस पैम्फिगॉइड में निकोल्स्की साइन नेगेटिव होता है। All right. Nikolsky sign has been a very useful diagnostic tool in case of skin disorders such as pemphigus, toxic epidermolysis, etc. The sign is demonstrated when the lateral pressure is applied onto the border of intact blister. जब आप किसी intact blister के border पे lateral pressure जब लगाते हैं, which result in dislodgement of the normal epidermis and the extension of the blister. Next, the following picture shows lateral skull radiograph. The radiological picture seen in this condition indicates what? It indicates the disorders of hemoglobin or blood. The radiographic features has demonstrated hair on end appearance. देखो यहाँ पे end पे आपको hair on end appearance दिखाई दे रही है, ठीक है। Hair on end appearance of the skull is a characteristic feature of chronic hemolysis that is usually seen in patients with sickle cell anemia or thalassemia. Which of the following is not seen in cleidocranial dysplasia? Cleidocranial dysplasia में high arch palate दिखता है, CBFA1 gene involvement दिखती है, open sutures are present और open frontanelles are present. But enlarged frontal sinuses are not seen in cleidocranial dysplasia. एनलार्ज की बजाय स्मॉलर फ्रंटल साइनसेस हो जाते हैं, स्पेशली मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैरेज ऑस्टियोमाइलिटिस? गैरेज ऑस्टियोमाइलिटिस चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, जिससे कि थिकनिंग ऑफ द वॉर्टिसेस हो जाती है एंड लॉस ऑफ मेडुलरी कैनाल विदाउट द साइंस ऑफ active infection is there. Next, anti-nuclear antibodies are most commonly seen in what? Anti-nuclear antibodies are most commonly seen in systemic lupus erythematosus. Anti-nuclear antibodies also seen in scleroderma and rheumatoid arthritis, but 96 to 100% of cases of systemic lupus erythematosus are positive for anti-nuclear antibodies. However, the diagnosis is based upon both clinical symptoms and serum profile. Next, a 35-year-old patient reported to your department of oral pathology with a swelling in the posterior jaw region. Posterior jaw region में swelling है. Biopsy was sent to the lab and the following picture was seen. What is your diagnosis?
तो ये हमारे पास जो पिक्चर है इट रिप्रेजेंट्स ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सिस्ट है उसकी लाइनिंग जो है दैट इज पैराकेराटिनाइज्ड। 60-year-old male patient with a habit of smoking present with swelling in the front of the ear, ठीक है। हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग है, स्वेलिंग आ गई फ्रंट ऑफ द ईयर में। द हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर इज एज शोन इन द इमेज बिलो। व्हाट इज द डायग्नोसिस फॉर दिस केस? देखो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर ऐसी ऐसी दिखेगी। देयर इज अ केस ऑफ वॉर्थिन्स ट्यूमर, ठीक है, वॉर्थिन्स ट्यूमर। क्लासिकल पिक्चर ऑफ पैपिलरी लिम्फेमेटॉइड सिस्ट एडिनोमा विद पैपिलरी प्रोजेक्शंस ऑफ एपिथेलियम इनटू द सिस्टिक स्पेसेस। ये बीच में जो चीज़ें हैं दीज आर सिस्टिक स्पेसेस कंटेनिंग इओसिनोफिलिक कोएगुलम, और ये जो बाकी हमारे पास ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं दीज आर लिम्फोसिटिक एग्रीगेट्स। ओके, नेक्स्ट नेम द कंडीशन शोन इन द इमेज बिलो। इट इज फ्यूजन। देखो यहाँ पे दो दांत फ्यूज कर गए हैं, आगे के दो लेटरल और कैनाइन जो है वो फ्यूज करे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अ कंडीशन दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ डेसिडस, मैंडिबुलर, लेटरल इंसाइजर एंड मैंडिबुलर डेसिडस कैनाइन बायलेटरली। जेमिनेशन में क्या होता है कि द नंबर ऑफ टीथ इज सेम और इंक्रीजेज बाय द वन, ठीक है। लेकिन फ्यूजन में ऐसा हो जाता है दो दांत मिलके एक दांत बना देते हैं। नेक्स्ट द फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल पिक्चर इज सीन इन व्हाट। देखो ये रेडियोलॉजिकल पिक्चर जिसमें मल्टीपल पंच्ड आउट लीजन्स आपको स्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल पंच्ड आउट लीजन्स इन द स्कल इज सीन इन मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट ऑल सिंड्रोम्स आर एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक्सेप्ट व्हाट। पैरा-रोबिन सिंड्रोम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। वैंडर वाडे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। पॉप्लिटियल टेरिजियम सिंड्रोम is associated with cleft lip and palate, but Gardner's syndrome cleft lip और palate के साथ characterized नहीं होता है। Gardner syndrome is characterized by familial adenomatoid polyposis, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इसके साथ, प्लस रेटिनल एपिथेलियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्लस सुपरन्यूमरी टूथ आ जाते हैं। रेटिनल एपिथेलियल हाइपरट्रॉफी प्लस सुपरन्यूमरी टूथ आर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी फॉर गिवन कंडीशन। ये हमारे पास जो बीच में है दिस इज अ मेजियोडेंस। जितनी जल्दी दिखेगा उतनी जल्दी निकाल देना। मेजियोडेंस इज अ टाइप ऑफ सुपरन्यूमरी टूथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज ग्रेटेस्ट अफिनिटी फॉर बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट्स के साथ ग्रेटेस्ट अफिनिटी जो होती है दैट इज ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट्स आर द प्राइमरी एजेंट्स इन द करंट फार्माकोलॉजिकल आर्सेनल अगेंस्ट ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन लॉस ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन लॉस को रोकने के लिए हम बिसफॉस्फोनेट्स को यूज़ करते हैं। पेजेट डिजीज ऑफ द बोन, मैलिग्नेंसीज ऑफ मेटास्टैटिक बोन, मल्टीपल माइलोमा और हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, इन सभी डिजीज को ट्रीट करने के लिए बिसफॉस्फोनेट यूज़ की जाते हैं। द प्राइमरी सेल्स टारगेट ऑफ बिसफॉस्फोनेट इज ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि बोन को डिसॉल्व करेंगे वो सेल प्राइमरी टारगेट होते हैं। बिसफॉस्फोनेट बाइंड टू द बोन सरफेस एंड आर इंजेस्टेड बाय द ऑस्टियोक्लास्ट ड्यूरिंग एक्टिव बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट से एक्टिव बोन रिजॉर्प्शन में ये बिसफॉस्फोनेट अपटेक हो जाते हैं एंड आर इंटरनलाइज्ड बाय पिनोसाइटोसिस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। Bisphosphonates suppress the osteoclastic activity and zoledronate has been found to have greatest anti-resorptive potency on the basis of degree of inhibition of major target enzyme that is farnesyl pyrophosphate synthetase in osteoclasts. Next, which type of endotracheal tube is most appropriate for submental intubation? Reinforced endotracheal tube जो होती है वो submental intubation के लिए सबसे ज़्यादा appropriate होती है, ठीक है। सबमेंटल में डायरेक्टली हम मतलब मेंटल ये जो है सबमेंटल नसर इससे छेद करके अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देते हैं। एयरवे मैनेजमेंट इन द पेशेंट्स विद क्रेनियोफेशियल और कम्प्लेक्स मैक्सिलोफेशियल इंजरीज इज अ चैलेंज टू एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। Submental intubation is useful technique that there is a less invasive than tracheostomy and is securing the airways where orotracheal and nasotracheal intubation cannot be performed. A flexible and a kink-resistant reinforced endotracheal tube with detachable universal connector is commonly used for submental intubation. Next, a patient who is receiving warfarin therapy has to undergo surgical procedure. How will you manage this case? Warfarin therapy है तो उसमें कोई भी हमें नीड नहीं है टू स्टॉप द वारफेरिन फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। देखो, टू रूटीनली स्टॉप वारफेरिन और द एंटीप्लेटलेट थेरेपी फॉर 3 to 10 days बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन, दैट इज डन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन कॉमन अमंग फिजिशियंस एंड डेंटिस्ट। ओरल सर्जरी कैन बी कंप्लीटेड सेफली विद एन INR फ्रॉम 1.5 to 2.5। INR 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में अगर होगा तो हम ओरल सर्जरी इजीली कर सकते हैं। अ स्मॉल स्टडी हैज सजेस्टेड दैट विद एप्रोप्रिएट लोकल मेजर्स to reduce the bleeding, teeth may be removed by simple extraction or with an INR of 2 to 4. Dentists should still be cautious before they remove the teeth where INR exists or exceeds with 3.
ठीक है। अगर INR 3 से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे कॉशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन 1.5 to 2.5 है तो इट इज़ सेफर एंड यू कैन कंप्लीट योर सर्जरी। हाउएवर द लेटेस्ट स्टडीज हैज सेड दैट देयर इज नो नीड टू स्टॉप द वारफेरिन थेरेपी बिफोर एक्सट्रैक्शन। लेटेस्ट स्टडी कहती है कि वारफेरिन नहीं रोकना है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। द एक्सट्रैक्शन उसको INR पे डिपेंड करता है, ठीक है। वारफेरिन मेंटेन कर रहा है INR को, ठीक है। तो INR पे डिपेंड करता है कि आपको ये अपनी एक्सट्रैक्शन करनी है नहीं करनी। द एक्सट्रैक्शन कैन बी डन विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस। हीमोस्टैसिस कैन बी अचीव्ड इवन विदाउट द स्टॉपेज ऑफ वारफेरिन। Which of the following conditions are included in adverse pregnancy outcomes? Adverse pregnancy outcome includes pre-eclampsia, low weight birth, and gestational diabetes. Adverse pregnancy outcome is a broad term comprising of health problems that occur in mother, the newborn, or both during pregnancy, labor and delivery, and the postpartum period. ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद इट्स ऑनसेट और फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है वो, मतलब ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरी बात आती है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। न्यू हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स आफ्टर वीक ऑफ 20 ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट प्रोटीनूरिया, ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाती है 20 वीक के बाद डेवलप करेगी विदाउट प्रोटीनूरिया। फिर आती है बात प्री एक्लैम्पसिया की, PRE एक्लैम्पसिया। इट इज़ द न्यू हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स आफ्टर वीक ऑफ 20 विद प्रोटीनूरिया और एविडेंस ऑफ एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑर्गन डिसफंक्शन या फिर प्रोटीनूरिया देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है प्री टर्म डिलीवरी। अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करने से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज प्री टर्म डिलीवरी। उसके बाद बात आती है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। बर्थ वेट जो है दैट इज़ 10% और लेस देन दैट ऑफ द गेस्टेशनल एज। जितना गेस्टेशन के टाइम पे बर्थ का मतलब वेट होना चाहिए उतना वेट ही नहीं पहुंच पाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज देयर अ कॉमनली प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ जिंजाइवल इन्फिल्ट्रेशन। तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर हाई अमाउंट ऑफ जिंजाइवल इन्फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होती है। जिंजाइवल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया M4 and acute monocytic leukemia M5. Next, what is the main function of epidermal growth factor? Epidermal growth factor का main function क्या होता है? वो epidermal growth करवाता है plus tooth formation करवाता है, दो चीज़ें करवाता है। Epidermal growth factor is a common mitogenic factor that stimulates the proliferation of different type of cells, especially fibroblast and epithelial cells. Epithelial growth factor, it activates the epithelial growth factor receptor that is EGFR or /ERBB receptor, which initiates in turn intracellular signaling. EGF acts to stimulate growth of epithelial cells, accelerates the tooth eruption and eyelid opening in mice, and inhibits the gastric acid secretion, and it is involved in wound healing. Endotoxin is present in outer membrane of which of the following bacteria? gram negative bacteria के अंदर endotoxin जो होते हैं वो outer membrane में present होते हैं। The lipoprotein polysaccharide endotoxin macromolecules are cell walls components of gram negative bacteria. Endotoxins are glycolipids, LPS macromolecules that make up about 75% of the total outer membrane of gram negative bacteria, and they are capable of causing a lethal shock. The most vascular supply of temporomandibular joint is by what? Most vascular supply जो होती है वो retrodiscal tissue के अंदर होती है of the temporomandibular joint. Let's identify the root canal preparation error shown in the image. तो इसमें ये वाला हमारे पास दिया हुआ है, this fourth one. Okay, तो this is ledge with perforation. बाकी सारे देख लो एक बार. It is apical zip. अगर आगे जाके ये खोल रहा है दैट इज apical zip. बीच में अगर हल्का सा ledge बन रहा है दिस इज ledge formation. फिर आता है apical zip with perforation. यहाँ पे पूरा अपाइकल जिप है और लास्ट में जो अपाइकल फॉर्मेन है उसको हमने बड़ा कर दिया, लगभग परफोरेट करके बड़ा कर दिया। नेक्स्ट दिस इज लेज विद परफोरेशन। यू हैव मेड अ लेज विद परफोरेशन ऑफ द रूट, ओके, और नीचे एक साइड पे आपका खाली रहता है। फिर फोर्थ आता है लेज ऑफ वर्किंग लेंथ बियॉन्ड द एपेक्स। लेज बना पहले तो, फिर वर्किंग लेंथ आपने बियॉन्ड द एपेक्स ले गए। दीज आर ऑल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट कैनाल प्रिपरेशन एरर्स, ओके, और जितने भी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द अप्लायंस। यहाँ पे बीच में स्पेस खाली हुई है और ये स्पेस को गेन करने के लिए हम अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ गर्बर स्पेस गेनर, गर्बर स्पेस रीगेनर। इट कंसिस्ट ऑफ बैंड अडेप्टेड टू द टूथ एंड ओपन कॉइल इज इंसर्टेड into the U-shaped wire. Wire is inserted into the molar tubes welded on the band and whole assembly is inserted over to tooth. ठीक है, मतलब ये हमने लूप बनाया, ये वायर बनाई और इसको हमने दूसरे दांत के साथ लगा दिया।
ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम स्पेस को रीगेन करने की कोशिश करेंगे स्पेस की। और इसमें बैंड का आप पैटर्न देख लो, ये स्पेस को गेन करने के लिए एक स्प्रिंगी टाइप पैटर्न है, ठीक है। स्प्रिंगी टाइप पैटर्न है जो कि स्पेस को गेन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दिस इज अ गर्बर स्पेस रीगेनर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अप्लायंस। इट इज सिंपली बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर, ठीक है। इसमें ना ही कोई स्प्रिंगी पैटर्न है जिससे स्पेस को रीगेन कर सकते हैं। इट इज सिंपली मेंटेनिंग द स्पेस। इट इज यूनिलेटरल, it is non-functional, and it is banded over to the tooth. Band and loop space maintainer is a fixed non-functional passive space maintainer, maxillary or mandibular. It is unilateral, most typical, and can be bilateral if permanent teeth are not present. It is single tooth span. एक single tooth के space को maintain करने के लिए इसको use किया जाता है। Next question is identify the appliance. It is twin block appliance, ठीक है। ऊपर भी 2 blocks दिए, नीचे भी हमने 2 blocks दिए। It is a twin block appliance as a simple bite blocks are given with occlusal inclined planes. Next, identify the appliance. This is Herbst appliance. Functions as an artificial joint between maxilla and mandible. Okay. Next, what is the nasolabial angle that is present in the case that is seen below? So this is naso and this is labial. This angle it is asking कि कितना एंगल होगा? It is an acute angle, ठीक है। एक्यूट एंगल। नेज़ोलेबियल एंगल मेन में 90 to 95 डिग्रीज के लिए होता है, ठीक है, तक होता है, और वुमेन में 95 to 105 डिग्रीज तक होता है। एंड कॉलमनर शो इज 3 to 5 mm। कॉलमनर शो जो होता है दैट इज 3 to 5 mm। दिस इस पेशेंट में हमारे पास नेज़ोलेबियल एंगल इज एक्यूट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अप्लायंस। दिस इज नाइटा एक्सपेंडर। नाइटा एक्सपेंडर में आपने पीछे ये वाली वायर ढूंढनी है, ओके। पीछे ब्लैक कलर की एक वायर लगी होगी जो कि दोनों आर्चेस को एक्सपैंड करने के लिए बनाई है हमने, ठीक है। इट इज बेसिकली अ नाइटाई पैलेटल एक्सपैंडर। इट इज अ टैंडम लूप निकल टाइटेनियम temperature activated palatal expander that produces light continuous pressure on the mid palatal suture while simultaneously up-tightening or uprighting or rotating and distalization of the maxillary first molars. Identify, simple identify बोला है। It's a winged clamp with bow, ठीक है। It's a rubber dam retainers और rubber dam clamps। इसमें bow होता है एक, इसमें prongs होते हैं, ठीक है, और prongs के साथ 2 holes होते हैं। एक विंगलेस होता है जिसमें ये चीज साइड के विंग नहीं लगे होते, और एक विंग्ड होता है। विंग पोस्टीरियर के लिए यूज़ करते हैं, विंगलेस हम ज़्यादातर एंटीरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि जो ब्रॉडर सरफेस होता है वो टुवर्ड्स द बक्कल साइड जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द गिवन इमेज? इट इज़ इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर। ईपीटी की इमेज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम बेसिकली किसी भी टूथ की वाइटैलिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। मोनोपोलर डिवाइस है, फ्लो करता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द प्रोब टिप टू द टूथ। While the current is flowing through the tooth, A delta nociceptive fibers will be stimulated, resulting in tingling sensation or zinging sensation to the patient, ठीक है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके पल्प में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है एंड द पल्प इज एक्टिव। Following instrument works on the principle of what? It is working on the principle of wheel and axle principle. Wheel and axle principle जो होता है MA, that's 4.6. It's modified form of lever principle. The effort is applied to circumference of the wheel, which turns the axle so as to raise a weight. ठीक है, जैसे क्रॉस वाला elevators होते हैं. It can cause most trauma minus fracture of the mandible. CT of the mandible depicts what? CT of the mandible, it depicts the condylar fracture. यहाँ पे कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हुआ है दोनों साइड पे। ये टूटा हुआ है इस साइड पे, राइट साइड पे कॉन्डाइल टूटा हुआ है, ठीक है। द सीटी स्कैन शोज अ डिसकंटिन्यूटी इन द राइट कॉन्डाइल, हेंस इट इज अ मैंडिबुलर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। नेक्स्ट, द पिक्चर एग्जिबिट्स मैंडिबुलर डिस्ट्रैक्शन। नेम द प्रोसीजर। हम डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस कर रहे हैं, इसमें इलीज़ारोव प्रोसीजर वी आर गोइंग टू परफॉर्म। द इलीज़ारोव प्रोसीजर was given in 1951. It was developed for repairing the complex fractures or non-unions of the long bones. While treating a patient with short amputation stump, Ilizarov performed an osteotomy and applied an external fixator to lengthen the stump with the intention of placing a bone graft. Next, which of the following technique is shown in the picture for surgical extraction of the tooth? It is Sir William Kelsey Fry lingual split technique. ठीक है, देखो ये लिंगुअल प्लेट है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। इट इज़ अ सर विलियम कैल्सी फ्राई लिंगुअल स्प्लिट टेक्निक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग टेक्निक इज शोन इन द इमेज? इट इज़ IV आईलेट वायरिंग। देखो IV, ये आईलेट है और बीच में हमने IV वायरिंग करी हुई है। इट इज़ बेसिकली IV लूप वायरिंग और IV आईलेट वायरिंग। इट्स अ प्री स्ट्रेच 0.35 स्टेनलेस स्टील वायर इज टेकन, जो कि 3 मीटर इन लेंथ की होती है। Pre-stretched 0.35 millimeter. Now the wire is again divided into several segments of 15 centimeter each. कितने सेंटीमीटर का हम सेगमेंट लेते हैं? 15 सेंटीमीटर का सेगमेंट लेते हैं. Eyelet wires are made by twisting the middle of each
length of the wire around the shaft of the rod of 3 millimeter diameter. ठीक है, eyelet wire are made around by twisting the middle of each length of the wire around the shaft of a rod of 3 millimeter each. जो shaft of rod होती है वो 3 millimeter की होती है. 2.5 twist are suffice 2.5 twist देते हैं इसमें, and the ends of the IV eyelet wire are cut off obliquely to equalize their length and produce a sharp point which will readily pass through the interdental space. Recommended treatment for the child with this cleft will be what? इसमें सबसे पहले you will go for nasoalveolar molding. पहले नैम प्रोसीजर होंगे, उसी के बाद आपका क्लेफ्ट का सर्जरी जो होगा उसके बाद होगा. ठीक है, पहले प्री नैम आप लोगे, फिर पोस्ट नैम आप इसको जो मस्कुलर जितना भी है मस्कुलेचर उसको पास लेके आओगे. फिर देन प्रीनेटल आपका प्रीनेटल कंसल्ट होगा, देन जेनेटिक डायग्नोसिस होगा. बर्थ से 3 मंथ्स के बीच में नैम होगा और लिप टेपिंग प्रोसीजर्स होंगे. 3 to 4 मंथ में लिप एडिजन किया जाएगा एंड लिप रिपेयर किया जाएगा. 3 to 4 मंथ में लिप एडिजन एंड लिप रिपेयर विल बी डन. 1 ईयर का जब पेशेंट हो जाएगा तो पैलेटल रिपेयर किया जाएगा. ठीक है, 1 ईयर का पेशेंट हो जाएगा देन पैलेटल रिपेयर विल बी डन. 2.5 ईयर्स to 5 ईयर्स जब बच्चा होता है तो वहाँ पे स्पीच थेरेपी करी जाती है प्लस VPI वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी की सर्जरी की जाती है. 6 to 9 ईयर्स में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जाती है और एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग की जाती है. ठीक है, और 16 to 18 ईयर्स के अंदर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी की जाती है. 16 to 18 ईयर्स के अंदर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी जो कि फाइनल होती है वो की जाती है. Instrument shown in the image is used for what? This is a bone ronger. It is used for osteotomy. ठीक है, bone ronger surgical instruments होते हैं used to trim, contour and remove the bone after teeth extractions. Rongers have split mechanism between the handles and a sharpened working end. Ronger is a heavy duty instrument with a sharp edged scoop shaped tip used for gouging out the bone. Which of the following gas is administered in the nasal hood for management of pediatric patients? Pediatric patients को manage करने के लिए you will go with nitrous oxide plus oxygen. ठीक है, 85% जितने भी डेंटिस्ट होते हैं pediatric dentist वो inhalational nitrous oxide यूज़ करते हैं and in oxygen mask to sedate the patient, making it the most frequently used pediatric sedation technique today. ठीक है, but इसमें जो ऑक्सीजन है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, at least 20% the oxygen should be there. ठीक है, so that the hypoxic states does not get induced. और nitrous oxide is 75 to 80%. All right. Effect of pentoxifylline is what? Effect of pentoxifylline is decrease production of the free radical and inhibit the lipid peroxidation. ठीक है, lipids की peroxidation को pentoxifylline जो है रोकता है. Next, a child presents with a black stained teeth as seen in the image. History of recent first dental visit was given by the parents. Reason for black staining of the teeth is due to what? देखो, रीज़न फॉर द ब्लैक स्टेनिंग ऑफ द टीथ इज ड्यू टू द सिल्वर डायमीन फ्लोराइड एप्लीकेशन. ठीक है, सिल्वर डायमीन फ्लोराइड डज नॉट स्टेन द हेल्दी enamel, but when silver diamine fluoride is applied to the tooth, it oxidizes and leaves a black stain on the damaged cavity or the damaged proportion of the tooth. According to COTPA implementation, which of the following section is violated in the image that is given below? तो यहाँ पे आपका स्कूल के पास एक गुटखे यानी की दुकान खुली हुई है. It is violating the section 6B. ठीक है, section 6 in cigarettes and other tobacco products says that there is prohibition of the sales of cigarette and other tobacco products to a person below the age of 18 years in a particular area. No person shall sell, offer for sale or permit sale of cigarette or any other product to a person who is 18 years of age or under 18 years of age and in an area where the radius of 100 yards of an educational institution. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड्स के अंदर आप ये सेल नहीं कर सकते. Who introduced the ultrasonic devices in endodontics? तो Richman was the person who introduced the ultrasonic devices in endodontics. Next, the pH of chlorhexidine is what? Chlorhexidine की pH होती है 5.5 to 7. Okay, it is slightly acidic काम करने के लिए. ठीक है, chlorhexidine is the most potent tested bisphenolate. It has a strong base. इसके अंदर क्लोरहेक्सिडिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये सॉल्ट की फॉर्म में ज़्यादातर हमने रखा होता है. और सॉल्ट की जो पीएच आती है, जो क्लोरहेक्सिडिन फुल आता है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, उसकी 5.5 से 7 के बीच में बेस्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्शन होता है. ठीक है, फॉर कैनाल इरीगेशन, कैनाल की इरीगेशन के लिए आप 2% कॉन्सेंट्रेशन में क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं. व्हाट डज क्यू मिक्स कंटेन? क्यू मिक्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? क्यू मिक्स के अंदर ट्राइक्लोसैन प्रेजेंट होता है, अ क्लोरहेक्सिडिन एनालॉग प्रेजेंट होता है एंड EDTA इज प्रेजेंट. Triclosan is present, chlorhexidine analog is present and
EDTA is present. Qmix was introduced in 2011. It is one of the new combination products you introduced for root canal irrigation and is recommended to be used at the end of instrumentation after sodium hypochlorite irrigation. Qmix के अंदर chlorhexidine analog होता है, triclosan होता है, that is N-acetyl, NNN, trimethyl ammonium bromide, or EDTA as a decalcifying agent. It is intended as an antimicrobial irrigant as well as an agent to remove canal wall smear layers and canal wall debris. Protocol क्या रहता है? Qmix is suggested as a final rinse की तरह use किया जाता है after instrumentation and everything. Next, as per the 4-2-1 rule, fluid should be given at the rate of 4 ml per kg per hour. ठीक है, for कितने kgs? 4 ml per kg per hour आपको देना है 10 किलो के लिए. ठीक है, पहले 10 किलो के लिए आप 4 ml पर kg पर आर दोगे, फिर 2 ml पर kg पर आर दोगे फॉर नेक्स्ट 10 kgs. ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम डोज जो होगी वो 100 ml पर आर होगी. दैट इज द मेंटेनेंस डोज. दिस रूल वाज हॉलीडे-सीगार 4-2-1 रूल दैट वाज गिवन टू एस्टिमेट मेंटेनेंस ऑफ hourly fluid water requirements in a patient. Next, which among the following is characteristic oral manifestation of SLE? Systemic lupus erythematosus में आपको oral ulceration देखी जाती है. Oral ulceration will be visible. ठीक है. Next, in Sunderland's classification of nerve injuries, grade 4 injury का क्या मतलब होता है? Grade 4 injury का मतलब होता है epineurium is intact. Sunderland classification nerve injury के लिए दी थी. Grade 4 का मतलब होता है epineurium is intact. Next, after Gillies approach procedure was done, the patient developed a severe temporal swelling. गिलीज टेम्पोरल अप्रोच करिए आपने और पेशेंट को सीवियर टेम्पोरल स्वेलिंग होगी. इट इज़ लाइकली ड्यू टू व्हाट? इट इज़ लाइकली ड्यू टू हेमेटोमा ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज द क्लोजेस्ट आर्टरी टू द सर्जिकल फील्ड इन गिलीज टेम्पोरल अप्रोच. एंड इट मे गेट इंजर्ड व्हाइल प्लेसिंग द टेम्पोरल इंसिजन. दिस कुड रिजल्ट इन अ पोस्ट ऑपरेटिव हेमेटोमा, जहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है इंजर होके वो वहाँ पे हेमेटोमा बना देगी पूरे गिलीज टेम्पोरल अप्रोच वाले रीजन में, या फिर हम कह सकते हैं टेम्पोरल स्वेलिंग बना देगी. In Gillies temporal approach to treat the zygomatic arch fractures, the elevator is placed between what? Zygomatic arch fracture को treat करने के लिए the elevator is placed between the temporal fascia and the temporalis muscle. Temporal fascia और temporalis muscle के बीच में elevator को place किया जाता है. ठीक है, जिससे कि हम सीधा digomatic bone के पीछे जाते हैं और उसको फिर elevate करते हैं. Next, the following shape of the head is known as what? तो आपको ये वाली head की shape दे रखी है, थर्ड वाला. ठीक है, तो it is a brachycephalic head है. ठीक है, द टर्म ब्रेकिसेफेली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मतलब ब्राखू. ब्राखू का मतलब होता है शॉर्ट और सिफेलोस का मतलब होता है हेड, विच ट्रांसलेट्स इनटू शॉर्ट हेड. ब्रेकिसेफेली इन एन इन्फेंट स्कल डिफॉर्मिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर देन अब नॉर्मल रेशियो ऑफ द स्कल लेंथ टू इट्स विड्थ. नॉर्मल स्कल लेंथ टू विड्थ की जो रेशियो होती है वो लोअर देन नॉर्मल होती है, दैट इज ब्रेकिसेफेलिक. प्लेगियोसेफेलिक में क्या होता है? लंबा होता है स्कल थोड़ा सा. ब्रेकी में देखो एकदम ऐसे गोलाकार है, अंडा ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे पीछे को छोटा है. प्लेगियो में ऐसी लंबाई में है, थोड़ा सा पीछे को भी जा रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं है. ठीक है, तो पूरा बराबर ही आ जा रहा है एक हिसाब से. दिस इज नोन एज प्लेगियोसेफेलिक और दिस इज नोन एज अ नॉर्मल स्कल. ओके, नेक्स्ट, इन फुजीता क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अ टाइप 2 केस वुड हैव व्हाट? टाइप 2 केस के अंदर अपर फेरेंजियल एंड टंग बेस ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देती है. अपर फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड टंग बेस ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देती है फुजीता क्लासिफिकेशन के. अकॉर्डिंग टू फुजीता क्लासिफिकेशन, द अनाटमी ऑफ द अपर एयरवे इज क्लासिफाइड इनटू 3 ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप. टाइप 1 जिसमें कि अपर फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दैट इंक्लूड्स पैलेट, यूवुला एंड टॉन्सिल्स. टाइप 2 ऑब्स्ट्रक्शन में अपर फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एंड द बेस ऑफ द टंग ऑब्स्ट्रक्शन होती है. टाइप 3 में हाइपोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एट द टंग बेस एंड विद इट्स नॉर्मल पार्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट आपको इस बोन का जो है डायग्राम दिया हुआ है और उसमें लेबल करने को बोला है व्हाट इज सी. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्कैपुला इज पैल्पेबल इन एन इंट्राक्लेविकुलर फॉसा? पैल्पेबल पार्ट जो होता है वो सी होता है इन द इंट्राक्लेविकुलर फॉसा. ठीक है, द गिवन figure is of that of scapula. Scapula is a bone of the upper limb. Coracoid process is the palpable part in the infraclavicular fossa. ठीक है, coracoid process, this process, coracoid process, ये पार्ट जो होता है, दिस इज द ओनली पैल्पेबल पार्ट ऑफ द इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा.